Good evening, sir. Sir, actually, due to some net problems, we just disconnected. So that's why we were late by 10 minutes. Our chief guests have already joined. So I like to welcome all the participants, our chief guest, our speaker, as well as our convener and our chairman, Institution of Engineers India, to this webinar. We'll have a very brilliant talk in valuations problems regarding valuers. Actually, we face a lot of problems in valuations, not only bankers also, but also valuers faces a lot of problems. So that is the common issues which the bankers as well as the valuers should know about, and we'll discuss the matter and find out some solution out of it. I would like to welcome our chief guest, Sri A.G.K. Satyaprakash, who is the general manager in State Bank of India. Within a very short period of time, he agreed our proposal. So I, on behalf of All India Valuers Association, would like to thank you very much because of giving his valuable time. So I like to introduce him. Actually, he is a very senior person. Introduce him. He is a commerce graduate and have done his graduation in Bangalore University. And fortunately, he has got sixth ranks in the university. He had joined State Bank of Mysore in 1984, and in his long 38 years of service till now has serviced in various capacity as places in country as well as abroad. Presently, our GM sir is looking after marketing activity of home loans and home related loans of State Bank of India, all the values from all over India also. So that means he is also more or less common to us. Our problems is India's problems and he is looking after India. So our problems will be, I think, he'll clear about it, and we should discuss openly because we are the part of banks and bank is also part of ours. So we should discuss friendly and so try to sort out the problems faced by both bankers as well as vendors. In State Bank, as we know, the State Bank is the leading branch. The State Bank in all over the national, State Bank is the leading bank, and he is leading all the country, and he has a portfolio of more than 6 lakh crores. Satyaprakash sir takes care of marketing, strategy, product development, publicity, and ultimately growth in business. He was, before joining as the general manager here in corporate office, he was the module head in Chennai North as well as in Coimbatore in Tamil Nadu. Before assuming the president assignment, he has handled various assignments in credit management, foreign exchange, treasury management, etc. He is basically from Bangalore and he is blessed with her daughter as well as son. This is a small brief of our chief guest, General Manager Satyaprakash sir. So before starting the program, actually there was some changes in change in program schedule. Actually, Engineer Ramakant Yadav, who is the Secretary of Institution of Engineers India, was supposed to introduce our chief speaker Ram Govind Sharma, but since his mother is in ICU, so he is in a hospital. So his place will be carried out by our chairman, Mr. Vivek Asthana. So now I like to request our chief guest sir to give some deliver some lecture, some advice which will be much more beautiful for us, all the valuers. So please, sir, you come to and speak something to us. Yes, sure, sure. So, good evening, everybody. I'm extremely delighted to be with you this evening. Thanks to Mr. Das for inviting me for this August gathering. And respected President Mr. Das, distinguished office bearers of All India Valuers Association, honorable members, Pan India of the association, and I'm very happy that you are regularly meeting, conducting webinars, and getting connected to discuss common issues all valuers have across the country. It's a very, I should say, a very good or very excellent initiative of the association to do this. And also, it is also important that you also all bankers like us who also have thoughts on valuations. And as you all know, and credit decision
cannot be taken without valuer's report. In that way, the valuation reports given by you are very valuable, based on which credit decisions are taken. This is one. And another thing is, you are the people who get the indication whether credit offtake is happening or not. That means you are the first what you call, you are the person who gets the first hand information as to whether the economy is on track, or it is going back, or it is stagnant, or anything like this. Actually, your reactions are the barometer of the what economy, what is happening in the economy. Suppose how it happens. I'm sharing my experiences. I'm talking about my experience. I'm not prepared any speech here. Like, when post-COVID, when the economy bounced back, activity, now the credit uptake is happening, and like suddenly you all the activity happens around you. Many valuation requests come, many changes are going to happen. You get the information first. And as far as relationship between bankers and the valuers, it is like it cannot be separated. It is something which is go hand in hand together. In my past 38 years of experience in banks, I have come across many valuers across the country. And I think this is the one, like, I also should say that when I was in Coimbatore, I was a deputy general manager in Coimbatore. Your Valuers Association of Coimbatore, I think so, whether it is the concerned person is there or not. But I was also invited to the meetings of the Valuers Association in Coimbatore. I have attended some meetings. Like, what I'm trying to tell you is that when a valuation report comes, I go straight to the last page. What is the market value? What is realizable value? What is distress value? Depending upon the whatever the formats you have. Because what I'm trying to tell you is that we are not technically competent, technically qualified to understand anything else beyond your numbers. We are so much different. Bankers are so much dependent on your valuation reports to take a credit decision. We are very good at taking credit decisions, but not when it comes to valuation. It is up to you, and your reports are very valuable. And you also have many issues, of course, many problems. And one of the main problems what I perceive is that market value of any property is very dynamic. It keeps changing. Today, it depends on the demand and supply. The broad principle. But like something happens in that area, suppose some development happening in that area, suddenly value goes up, and after 2 years something is not happening, some changes happen in that area, and something value goes down. And nowadays the valuation has become too micro. I should say, in the same locality, one road there is some different valuation, in other road there is a different valuation. So, like, it's a very dynamic situation. We also understand that, but what I'm again underlying the fact is that we depend on the valuation. Here, I've got something to add that, see, as you can also give us some valuable inputs as to why this decision has been taken. When we come across broadly the valuation, different valuers reports, when we compare, in our bank there is a procedure above 1 crore, we take 2 valuation reports. So broadly there is not much change. But if in that area, of course, there is a large variation between the government value and the market value. That is because of so many reasons. Government values have not been changed for long years. But if there is anything you would like to add, you can please add. In the sense, that will help us to take correct decisions. Sometimes the property will be very valuable but not saleable. Like ultimately, when the account becomes distressed, we should be in a position to sell. Although there is a value, but if it is not saleable, it won't make sense to us. And any such inputs which you can share to bankers, that will be very good. That will be helpful in making great decisions. And at the same time, any
developments that are happening in a particular area of your jurisdiction or your area where you operate, if there is any such things which will impact the value of the properties, such hints can be given to the bankers so that bankers will be cautious in regard to those accounts. Here, I would like to give a suggestion to Mr. Das and team that while you have pan India presence, why can't you have a journal or if at all it is there any, it is nothing to my, it is not in my knowledge. You can have a journal indicating the recent developments in various areas in the country as to valuation of the properties. So that which will be very useful to not only to the valuer community but also to the bankers and across many other stakeholders who are related to property valuations. That will, if you can run it can be e-journal, it can be anything which will give us a valuable inputs on the valuation. That will help us to keep. It's not that I only lend, but also we have to monitor. We have to monitor the credit portfolio and also see that credit portfolio is always healthy. If at all there is any indications of being stressed, we have to take proper precautions at the appropriate time. So that is another thing. And of course, another thing which I would like to share also is that sometimes associated with some unethical practices also have happened, and the association should be mindful of that, and they should caution such valuers and take, if at all you have any a body where we can about taking disciplinary actions or anything like that, or cautioning the people, any such thing also, it helps all the stakeholders in the country. So what I'm trying to tell you is that, again, to some substance of my small speech is that dependability or is dependence, I should say, is huge on your decisions. While you say that while market value is dynamic, but at the same time we are dependent on your judgment and the valuations on the property, and you carry a huge responsibility. You may say that I'm only a barrier. No, you are ultimately contributing to the credit offtake of the country and also to the growth of the country. Because when the credit offtake and when we bankers lend, ultimately it results in growth in the economy. That way, you are a very important, say, part in the contribution to the growth of this country. You have a huge responsibility, and I should say that I always appreciate and acknowledge the contribution of valuers in the whole process, and I'm very happy to be here, and thanks to all of you for listening to me. I just have made the feelings clear to you, and of course, as Dav said, any such suggestions, valuables which you want to share it with me or something is most welcome. Thank you very much. Have a nice deliberations. Thank you. Thank you, Mr. Das. It's over to you. I'd like to thank you, Sir Lata, for your good advices. I am sure, sir, all the valuers of India actually they are getting their bread and butter from the banks, and most of the valuers are doing honestly and ethically. Of course, some mistake happens by some of the few valuers. I am sure we'll take care of it. Thank you, sir. Thank you. And expecting that you will also remain as a part of us, so that you can some idea in discussion also you can take part. Thank you, sir. Sure. Thank you. Thank you so much. विनीत कुमार जी, आपका माइक नहीं खुला है. Excuse me, Mr. Satya Prakash. Yeah, what you talked is about the ideal situation. Yeah. Actually, this should happen. But is this happening?
whether valuers are being valued. You said कि you are not technically competent Yes. to assess the technicality. Yeah. और building में तो there maybe you may be having some idea, but in plant and machinery you will not be having. And plant and machinery, you know, what the banks at lower stage is doing, they want actually accounting procedure in machines as well. It should be 20%, it should be 10%, and it should be 30%. You have made it more. They argue with the valuer. Because this is not the situation. The same machine, the same precision. One is made in Batala and other is made in Bangalore, has the different values. They have different marketability. As you said, it may be costly, but it is not marketable. That part, but they don't listen. Actually, what I can say is not a good word is the banks in a lower stage, even a zonal office, level officers, they think they are rather made valuation is a mockery. It's unfortunate. I'm very sad. I'm very senior man, although I'm not working for the State Bank of India because I am more than 70 years. That is the limitation in State Bank of India. The other banks are using, but now I have started refusing because you have made the fees so low. How you expect? Well, you have made a competition in valuers, and the competition. If somebody is doing at lower rate, what value he will be giving? What the knowledge and what the report he may be giving? You are considering only the fees. कि ओ दूसरा तो 3,000 में कर रहा है. You are asking for this 10,000. You want Welltech registered valuer, and Welltech has prescribed the fees. Okay. You are not following it. And the senior surveyors and those who can make a proper report and they know what can be given, what is the difference, exactly, just the proper report I am saying, you are not recognizing them because they don't work at 3,000 rupees. जिसमें 1,500 is spent on movement, travel. What you are paying? What fees you are deciding? And you may not be competent, but you are competent enough to assess the valuer. Yeah. This valuer is not good. Yeah. That much is, that comes out of experience. But you don't want a good valuer. It's unfortunate. Yes. Yes, sir. Yeah. I tell you. By the way, I'm sorry to take this, sir. I will tell you for example. This is the feedback. This is the feedback we get. We should get. In the sense, as you rightly said, the fees, low fees. I don't know. Yes, let me find out from the presenter. Because maybe, I don't know, maybe any local negotiations are there which I do not know. But let me find out. Definitely your suggestions. One example I want to give you, Mr. Satyaprakash. Yes, sir. One day I received a phone in the evening. He said, tomorrow can you go at 4 places and you have to make 4 valuation of assets, plant and machinery basically, the fixtures. And you have to get report in 2 days. Like you want me to visit 4 sites having a distance of some 30 to 40 kilometers. And you want to make me the list, whether do you have the list of machinery? No, we don't have anything, you have to make it there. This is what I am saying to Maury. I refuse. I refuse. I think that sorry, I can't do it. I think ground realities will be like this. Yeah. Sorry for this. Absolutely, sir. No, sorry. Why should we? Most welcome. So now may I invite Mr. Vivek Asthana?
Good evening, ladies and gentlemen. So, respected Chief Guest, Shri A.G.K. Satyaprakash Sir, GM Marketing Real Estate Housing, State Bank of India, Mumbai. Respected Engineer Govind Sharma ji, the expert speaker of today's expert lecture on valuers problem. Our engineer S.S. Das sir, the president of Valuers Association, secretary engineer K.K. Upadhyay sir, our convener engineer Vineet Kumar ji, and all the respected participants who have joined us today in this enlightened session of the webinar. So first of all, I would like to convey my wishes on the Holi, because we are assembling here just after the Holi. And on behalf of this IVA, I would like to welcome you all in this webinar. So today's lecture is the valuers problem of challenges, problems, difficulties being faced by the valuers. So in fact, starting from the valuation, if we go for any assignment, first of all, in this data and details collection, so many challenges are there. Right? If we are going for any plant and machinery or land and building valuation, so this thing is that the details, I mean the technical specification, the list, the values are not there. So even we get the book value of the plant and machinery, any reliable source may not be there, and how those book value have arrived, what is the escalation or depreciation on that, these type of details are not available. In the very beginning, there is a challenge to get these information about the plant and machinery. So another thing is that most of the time, what I see, the valuation is being done by those industries, factories which have been closed or going to be closed. The machineries are obsolete, and for the physical inspection, so it is very difficult. No operator is there to demonstrate those machines. No power is there to operate those machines. And another thing is that what our convener have discussed, the value, the resaleable value of those plant and machineries. That is again another challenge. Whether those machines will go in the scrap, or it may be sold to another countries, or at somewhere else it may be used. This is again another challenge. And the same thing for other assets, like our what we call as the intangible assets, the fictitious assets. So for those, the details are not available. So these things are actually challenge to get those details and information. Same thing is there in the liabilities. If we see the depth of that industry, so many of the debts are there. So this debt may be in the form of the loan given by the industry to their directors, to their employees. Data are not there for that. And again, regarding the receivables by those industry, that is also difficult. So there is actually what I feel lots of challenges are there to collect these information prior to the start of the valuation. And after that, once we go for the valuation, again there is a problem. No set standards, no set guidelines are there. And similarly, no books references are available there. So these things are there in this valuation business, this valuation job. And today we have the expert speaker, Engineer Ram Govind Sharma ji with us. And I hope he will cover lots of things in his expert lecture on this. So again, it is my proud and privilege to introduce our guest speaker, Engineer Ram Govind Sharma sir. So Engineer Ram Govind Sharma graduated in
Science from Magadha University, Bodh Gaya in 1981. He is an associated member of Institution of Engineers in Civil Engineering Division and life member fellow and chartered engineer of Institution of Engineers. Engineer Sharma approaches with sorry, I think I have lost my connection. So Engineer Sharma did an expert course on valuation of real estate from IESMA in 2019. He has an experience and exposure of more than 37 years in the field of valuation, consultancy and valuation services. Engineer Sharma is also a renowned writer in the field of spirituality and written popular books, Jeevan Rahasya, which is available on Amazon. He received Asian Press Sahitya Samman 2022 award for this book. His next book, Vidai and Adhyatma, is under publication. Presently, he is engaged with providing spiritual meditations and providing services as spiritual and Vastu advisors. So it will be a great opportunity for us to listen Engineer Ram Govind Sharma and to share his experience and exposure. So I convey my thanks also to the convener and to the organizer of this webinar. Thank you, sir. Thank you, Mr. Engineer, sir. May I request Engineer Ram Govind Sharma to start his speech, sir? Thank you, sir. नमस्कार to all of you. हम लोग अभी जो वेरियस प्रॉब्लम का आज जो मुद्दा उठाया है उसमें पढ़ाई लिखाई की बात कम करेंगे और जो विनीत जी बोले या विवेक जी बोले वो जो प्रॉब्लम है ना प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। पढ़ाई लिखाई हम लोग जीवन भर किए हैं और वो जीवन भर का पढ़ाई लिखाई जो है ना लगता है कि आगे काम लायक है, इसलिए हम लोग इसको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का ही हम डिस्कस करेंगे। इसमें दो तरह की बात आती है, किसी भी आदमी को अपना वैल्यू समझना है। ऐसा नहीं है कि केवल बैंकर्स ही दोषी है, वैल्यूअर्स भी दोषी है। कोई अपने आप को अपना वैल्यू नहीं समझेगा तो दूसरा उसको कहाँ से वैल्यू देगा। इसलिए मेरा फर्स्ट टॉपिक है वैल्यू ऑफ वैल्यूअर्स। वैल्यू ऑफ वैल्यूअर्स देखिए प्रैक्टिकली जो होता है, प्रैक्टिकली लोग मानते हैं कि डिग्री अच्छा है तो वैल्यूअर्स का वैल्यू अच्छा है, एक्सपीरियंस अच्छा है तो वैल्यूअर्स का वैल्यू अच्छा है, नॉलेज अच्छा है तो वैल्यू अच्छा है। क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन हुआ वेब साइट से, उसके ऊपर IDBI से हो गया, उसके ऊपर कुछ और हो गया तो अच्छा है। एक नैतिक वैल्यू होता है। जैसे आज हम लोग देख रहे हैं, आज हम लोग प्रोफेशनल फील्ड में या बिजनेस फील्ड में किसी भी एडवोकेट फील्ड में लीजिए, डॉक्टर फील्ड में लीजिए, या भी एक छोटा सा टैक्सी चालक को ही ले लीजिए, वो उन लोगों का अपना नैतिक वैल्यू है। यहाँ वैल्यूज का इतना एक वैल्यू है कि यहाँ सब कुछ होते हुए बाकी डिग्री एक्सपीरियंस नॉलेज पढ़ाई लिखाई की बात है। पढ़ाई लिखाई जीवन भर बढ़ते बढ़ते रहता है और सृष्टि के हुए 40 लाख साल हो गया, तब से लोग जन्म लेते हैं, सीखते हैं, चले जाते हैं। सीखने का काम खत्म नहीं होता है। और यदि कोई ये सोचता है कि नहीं हम बहुत सीख लिए तो सबसे वो कम सीखा हुआ है। इसलिए आज हम इस बात पर देख रहे हैं कि वैल्यूअर का प्रैक्टिस में रियल वैल्यू क्या है। रियल वैल्यू देखिए, पहले इसमें हम लोग एक चीज पे जाते हैं कि पहले जो हम लोग वैल्यूएशन करते हैं, 30 साल 35 साल से वैल्यूएशन करते हैं, तो वहाँ फॉर्मेट इजी था। तो
पन्ना 3 पन्ना का फॉर्मेट था। ये था सीबीडीटी का। सीबीडीटी के फी के अनुसार सेटिस्फैक्ट्री मिलता था, टाइम देते थे हम लोग। उसको टाइम दे, 1 बार गए, 2 बार गए, 3 बार गए, जैसा हो उसको जितना होता था हम लोग कोशिश करते थे कि इसमें जो भी क्लू है, जितना इशू है, पॉइंट आउट करें। इसके बाद में जो होता था वैल्यूअर्स का, देखिए ऑब्लिगेशन यही होता है कि किसी भी प्रॉपर्टी को जो डॉक्यूमेंट और प्रॉपर्टी जो भी बैंक या इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करता है, तो वैल्यूअर्स का ये मतलब नहीं होता है कि बैंक का लोन ऐसे करना है या बैंकों को इस तरह का तरीका है तो उस तरह का हम वैल्यूएशन का वैल्यूएशन। वैल्यूअर का ये मीनिंग है कि प्रॉपर्टी में जो जो चीज भी है बैंक के सामने स्पष्ट रूप से रखते और उस कंडीशन के साथ में अपना जो ओपिनियन है वैल्यू का उसके हिसाब से लोन हो या नहीं हो, ये वैल्यूअर्स का ड्यूटी नहीं बनता है। और यदि वैल्यूअर्स इस बात को छिपाता है तो वो बैंक से धोखा करता है। उस केस में बैंक भी डार्क में है और वैल्यूअर का फ्यूचर भी गया। तो पहले क्या था कि इजी प्रोसेस था, सीबीडीटी था, रिपोर्ट जो हम लोग बनाते थे वो नक्शा के अनुसार नहीं है तो साफ सुथरा लिख देते थे हम लोग कि इट इज नॉट कंस्ट्रक्टेड एज पर प्लान, या ये नक्शा के अनुसार नहीं है। बहुत सा फॉर्मेट में रहता था जिसका फॉर्मेट भी नहीं रहता। उस तरह से हम लोग देख करके उसको देते क्या था कि बहुत सारा इंक्वायरी भी देखने को मिलता है। कहीं पर भी जब इंक्वायरी होता है, जो मैटर कोर्ट पर है तो वहां पर यही देखा जाता है कि वैल्यूअर्स क्या गलती किया है। मान लीजिए तो वहां जो वैल्यू जो प्रॉपर्टी जिस तरह का है वो सारा कमेंट्स वहां पर रिपोर्ट में लिखा हुआ है तो वैल्यूअर्स इंक्वायरी से बड़े हो जाता है। लेकिन वहां यदि वो छिपाया है तो वहां उसको लपेट में ले लिया जाता है। यही बात कोर्ट में भी जाती है। यदि हम लोग ये इस पॉइंट से यदि वैल्यूएशन करते हैं तो प्रैक्टिकल वे में यही आज को देखने में मिलता है कि वैल्यूअर बैंक भले ही डिपेंडेंट करते लेकिन ये मैटर कोर्ट में नहीं दिखते। यदि वैल्यूअर किसी मैटर को छिपाया है तब वो टिक नहीं पाएगा, वो जहां तक भी हो। हालांकि वैल्यूअर्स आज के डेट में इसीलिए ऐसा सोचता है क्योंकि बहुत सारा फैक्टर है। जैसे 100 वैल्यूएशन हुआ वो कोई जरूरी नहीं है कि 100 का 100 कितना ईमानदार है, कितना क्या है, नहीं है। वो वैल्यूअर को देखने का ड्यूटी नहीं है। इस व्यू से आज के डेट में क्या है, देखिए प्रॉपर्टी वही रहा। प्रॉपर्टी दुनिया में बदला मैंने हम लोगों को खास करके बिहार, झारखंड में, यूपी में, इंडिया में प्रॉपर्टी बदला नहीं है, प्रॉपर्टी वही रहा है। लेकिन आज क्या करते हैं कि फॉर्मेट जो काफी टिपिकल है, 2 पन्ना का जो फॉर्मेट था आज 15 पन्ना 16 पन्ना का फॉर्मेट हो गया। पहले जो रिपोर्ट बनाने में 1 घंटा समय लगता था आज 1 दिन समय लगता है। क्योंकि उसका रेम्युनरेशन क्या हुआ, उल्टा हो गया। पहले 10,000 फी मिलता था, अभी 2,000 फी मिल गया। यहाँ एक बहुत बड़ा क्रिटिकल मैटर है कि आज हम लोग देखते हैं कि कहीं पर भी किसी भी लाइन में देखते एक छोटा सामान से लेकर के एक इंजीनियर, डॉक्टर या जितने भी नौकरी पेशा है चाहे जिनका वो डे बाय डे फी बढ़ता है, स्केल बढ़ता है। बैंकर्स का ही देख लीजिए, बैंकर्स का एक बार कुछ भी प्रॉब्लम आता है तुरंत स्ट्राइक, ये करो वो करो वो करो। आज कौन सी प्रॉब्लम है, कौन सी मैटर है जिसके लिए वैल्यूअर्स का फी 10,000 से बढ़ा करके 2,000 कर और फॉर्मेट को बढ़ा करके 2 पन्ना से 10 पन्ना कर दिया। ये कहाँ के मैटर है, ये कहाँ का सत्य है? ये तो स्पष्ट लगता है। इस बात को लेकर करके फिर हम लोगों को पढ़ाई लिखाई के क्या मतलब है। दूसरी बात, फॉर्मेट में जो कॉम्प्लिकेटेड डिस्क है, फॉर्मेट में बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड डिस्क है जिसे उतना एक छोटा सा हम डिस्क बताते हैं। इसी जगह जनरल बैंक में लिखा हुआ है वेदर जेन्युइननेस और ऑथोरिटी ऑफ अप्रूव्ड मैप प्लान इज वेरीफाइड। इसको करने का ये एक इसका मीनिंग बहुत सारा है। कुछ लोगों का कहना है कि देख लीजिए सामने में अच्छा खराब है, थोड़ा ये वो है तो यहाँ इसको जवाब भी देना है। इसका मतलब कि इसमें बहुत सारा हिडन है। जेन्युइननेस का मतलब कि मैप जेन्युइन है तो फ्रॉड नहीं है।
ये भी हिडन है कि जेन्युइननेस के अनुसार वो प्रॉपर्टी जमीन, तो इसके करने का हम लोग हमसे जो मांगा गया था, हमने बोला कि देखो जैसे आपका प्रॉफिट वहां से रजिस्ट्री ऑफिस से सर्टिफाइड कॉपी निकाल के है, हम लोगों को लेटर दीजिए, लेटर हम कॉर्पोरेशन में जमा करेंगे, वहां से वो इंक्वायरी करके उस बैग कर देगा, और उसके बाद में आप वहां से एक ये दीजिए कि एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट, हम उस आधार पर लिख सकते हैं कि आज पर कंप्लीशन सर्टिफिकेट एंड लेटर इश्यूड फ्रॉम दी कॉर्पोरेशन लिमिट और जो भी है उसके अनुसार ये क्योंकि हम लोगों को 2000 फी है, जितना भी फी मिले, मान लीजिए कि एक अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट में 100 गो फ्लैट, तो जेन्युइननेस का मतलब कि 100 फ्लैट आप इंक्वायरी करेंगे, हमको एक फ्लैट का वैल्यूएशन करना है, और हमको वहां पर जाकर के 100 फ्लैट का तो वैल्यूएशन नहीं कर सकते हैं, और उतना बड़ा अपार्टमेंट को इंक्वायरी करने, प्रॉपर इंक्वायरी करने में कम से कम हमको 1 महीना लगेगा, 2000-3000 में हमको 1 महीना करना है, ये सब पॉसिबल नहीं है, ये अधिकार क्षेत्र के बाहर है। तो यहाँ एक मैटर आता है कि फॉर्मेट बहुत सारा रिस्क पॉइंट भी है जिससे काफी दिक्कत है। इसके ऊपर एक आईबीएस रिक्वायर्ड भी हो गया है। आईबीएस का मीनिंग होता है अनकंडीशनल वैल्यू, उसमें शॉर्ट में लिखा हुआ है एक जगह कि अनकंडीशनल वैल्यू, इसमें एक दो जगह हम देख रहे हैं कि पैनलमेंट के जो एग्रीमेंट कराता है तो उसमें भी मानता है कि आई शैल डू अनकंडीशनल वैल्यूएशन, अनकंडीशनल वैल्यूएशन के बाद में कुछ बचता नहीं है, तो यहाँ आईबीएस रिक्वायर्ड का मीनिंग हो गया। तो पहले हम लोग लिखते थे कि एक प्रॉपर्टी जैसे जहाँ हम लोग देखने जाते हैं तो वो 1000 में बना है और नक्शा पास है 500 में पास है, तो 500 बेसी बना है, तो वहां करने का मतलब उसमें तो कंडीशन लगा हुआ है, जिस प्रॉपर्टी में कंडीशन लगा हुआ है उसको चाह करके उसको 10 महीना भी हम करेंगे तो वो उसको अनकंडीशनल कैसे हम रिपोर्ट बना सकते हैं, ये बहुत बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है। इसके अलावे एक सबसे बड़ी बात है कि हम लोग जो वैल्यूएशन करते हैं आज के डेट में, जो वैल्यूएशन होता है वैल्यूअर का यहाँ पर नया पुराना वैल्यूअर बहुत अधिकार है, तो वैल्यूएशन बना करके यदि कोई जेन्युइन वैल्यूअर है, कोई पुराने वैल्यूअर है, जो जेन्युइन वैल्यूअर है, जो दूध का दूध पानी का पानी जितना भी वैल्यूएशन हुआ वो ले आकर के देता है। बैंक से क्या आता है, भाई इतना में तो लोन होगा नहीं मेरा, इतना में लोन होगा नहीं, इसको हम कैसे एक्सेप्ट कर सकते, इसको हम नहीं दे सकते। वो उसका कोई वैल्यूअर है, नया वैल्यूअर कोई भी वैल्यूअर है, उससे वो अपने हिसाब से वैल्यूएशन बना करके अपना काम चलता है। लेकिन यहाँ जो जेन्युइन वैल्यूअर है वो जेन्युइन वैल्यूअर को क्रश हो जाता है। यहाँ एक चीज हम बोलेंगे कि भाई इमोबल प्रॉपर्टी है, उसमें तो कार्ड की दिशा नहीं लिखा हुआ है, 3,02,005 रुपये दाम है, उसका 10% 5% वैल्यू बेसिक, हम 10% 5% में जाके एडजस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन 2 लाख के हम 4 लाख या 10 लाख में तो नहीं कर सकते। तो इस तरह का रिक्वायरमेंट आज के डेट में हो गया है, और उस केस में वैल्यूएशन किया गया, इंक्वायरी किया गया, सारा टाइम वेस्ट हुआ, वहां जाके दे रहे हैं तो वो बोल रहा है कि नहीं आपके वैल्यूएशन से तो मेरा काम चलेगा नहीं, ये वैल्यूएशन हम नहीं देंगे, इसको हम पेमेंट भी नहीं करेंगे। ये कहाँ की मैटर है, ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट है। और इस तरह का जो कुछ जो वैल्यूअर हो गए, कुछ जो वैल्यूअर का जो अपना व्यू है, वो वैल्यूअर आज के डेट में वो मिला जुला करके कर रहे हैं, वो ये सारा हम लोग का प्रॉब्लम का जड़ वही हो गया है कि कुछ वैल्यूअर जो है, कुछ वैल्यूअर इसमें ऐसा लिप्त है कि जो अच्छे वैल्यूअर है उनको मार्केट से आउट हो जाना पड़ रहा है। हम इस पॉइंट पर बहुत अच्छे वैल्यूअर को जो 65 प्लस वैल्यूअर है, इनसे भी एक बार बहुत ट्राई किए थे डिस्कस करके, तो वो वही बोले कि देखिए शर्मा जी, यदि हम लोग नहीं करेंगे तो मार्केट से आउट हो जाएंगे। मार्केट से आउट हो जाएंगे इसका मीनिंग क्या है? मार्केट से आउट हो जाए, मार्केट तो
आज हम भी एक तरह से मार्केट नहीं करते, भी माना जाएगा। दूसरी बात, ये हम लोगों का मेन पॉइंट है। इस तरह से इस हिसाब से यदि हम देखते हैं तो किसी वैल्यूअर का डिग्री के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से, नॉलेज के हिसाब से, रजिस्ट्रेशन के हिसाब से जितना भी वैल्यू हो, लेकिन रियल प्रैक्टिकल व्यू से उनका प्रैक्टिस रियल वैल्यू में प्रश्न लग गया है, और इस प्रश्न के चलते काफी वैल्यूअर स्ट्रगल हो गए। और ये भी है कि ये वैल्यूअर भी बहुत दिन तक नहीं टिके, लेकिन प्रोफेशन स्ट्रगल कर जा रहा है। अब यहाँ डिटेल में हम लोग देखते हैं, एक देखिए फी वाली जो बात है, उस फी को लेकर के अभी एक बैंक में मीटिंग हुई थी। बैंक में मीटिंग में फी का मुद्दा उठाया गया, तो वहाँ यही जवाब मिला कि देखिए बैंक जो है प्राइवेट बैंक, उनका कहना था तो कुछ बैंक शुरुआती में स्टार्ट किया कम फी में, कम कर करके वो लोन देना शुरू कर। उसके हिसाब से क्या दूसरा भी इस तरह का, तीसरा भी आया, चौथा भी आया, और आज स्थिति ऐसी हो गई है कि हम यदि फी बेसी देते हैं तो हमारा कस्टमर सब भाग जाएगा, और वो भाग जाएगा तो हम मेरा तो कोई केस आएगा नहीं, केस आएगा नहीं तो बैंक करेगा, इसलिए हम लोग फी को नहीं बढ़ा सकते। अब यहाँ मैटर है कि वैल्यूअर्स का ही फी क्यों नहीं किया जा रहा है, क्यों नहीं जो बैंक का ऑफिसर है, जो बैंक का जो करता धरता है, वो उनका एक तरफ फी बढ़ रहा है, तो वैल्यूअर के फी से ही सभी भरपाई हो जाएगा। ये बहुत मेजर चीज है। अब यहाँ ये आता है फॉर्मेट में जो है फॉर्मेट में एक तो कैलकुलेटी वाला है, कहीं कहीं ऐसा भी फॉर्मेट है, ऐसा अनेक्चर जो लगा हुआ है, उस अनेक्चर में ऐसा चीज लिखा हुआ है कि उसी में इंडेमनिटी वगैरह सब घुसा हुआ है। इतना शॉर्टकट करके किया हुआ है कि वो उसको यदि वो बोलता है कि आई रिसीव दिस लेटर, आई रिसीव असाइनमेंट लेटर इन सच एंड सच मैनर, इस उसमें घुसा हुआ है। तो इस भेद करने वो वैल्यूअर जो है, वैल्यूअर का वो भविष्य में दांव पर लग रहा है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, एक कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मेट की और आईबीएस कंप्लायंस वाला मेजर चीज है। आईबीएस कंप्लायंस वाला में क्या है, आईबीएस कंप्लायंस वाला में देखिए तो कुछ ऑब्जर्व किए थे मैटर को, उसमें जनरल हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो जाते हैं साइट पे देखने के लिए, हम लोग को मिलता है कि कोई जो जमीन है लैंड इज नॉट डिमार्केटेड, लैंड इज पार्टली डिमार्केटेड, लैंड सेल डीपर देन सेल डीड डॉक्यूमेंट, लैंड एरिया डीपर देन सेल डीड डॉक्यूमेंट, लैंड बाउंड्री डीपर देन सेल डीड डॉक्यूमेंट, लैंड डायमेंशन डीपर देन सेल डीड डॉक्यूमेंट, extra land located under the boundary without internal demarcation, road width and its location than same deed document, building constructed without approved plan, building constructed not as per approved plan, building is generally found built more than the approved plan, internal construction mostly differ। इस तरह से क्या कहने का मतलब है कि हम लोग जितना भी प्रॉपर्टी इंस्पेक्शन करते हैं कुछ हम लोगों को मिलता है, फिर उसको वो कंडीशनल है, तो हम अनकंडीशनल में कैसे जा सकते हैं। इसके बाद में हम लोगों का एक प्रॉब्लम यही आता है कि आज की डेट में इसका होने के बाद में फी का जो पोजीशन है, फी हम जिसका समझते हैं अच्छा वैल्यूअर के लिए, अच्छा वैल्यूअर को ऑफिस मेंटेन करना है, स्टाफ को देना है, ये देना है, उसको मिनिमम 3000 रुपया एक रिपोर्ट पर खर्चा हो जाएगा, 3000 से फी कम मिलेगा, घर से कहाँ से देगा। अब यहाँ ये भी बात है कि फी भी कम देना है, वैल्यूएशन को कहने का यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि यहाँ ये भी कहता है कि आपको वैल्यूएशन जेन्युइन करके देना है, आपको आईबीएस के अनुसार करके देना है, आपको जितना फॉर्मेट है सारे चीज करके देना है। तो
ये चीज हमारे समय से आज के डेट में पॉसिबल है। दूसरी बात, यहाँ एक अब वैल्यूअर का बेस आता है, वैल्यू का बेस। देखिए कुछ बैंक में क्या है, अभी माहौल बना हुआ है, जो गवर्नमेंट वैल्यू है, गवर्नमेंट वैल्यू को बेस लेकर के कर, गवर्नमेंट वैल्यू के बेस लेकर कर दीजिए। यहाँ भी कहता है 10% 20% बढ़ा के कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पंजाब का कोई हाईकोर्ट या कोई हमारे पास अभी नहीं है, वहां से ऑर्डर इश्यू हो गया है कि गवर्नमेंट वैल्यू सेपरेटली इज नॉट जस्टिफिकेशन ऑफ मार्केट। तो यहाँ एक बोलता है, हमको स्टेट बैंक से एक आया भी था, हमसे एक ऑफिसर पूछे कि ये हमको बताइए कि लैंड वैल्यू में तो हम लोग 20% बढ़ाते हैं, तो बिल्डिंग वैल्यू में भी 20% बढ़ाएंगे क्या? हम उनको बोल दिए कि आप जो कर रहे हैं लैंड वैल्यू बढ़ाने के लिए 20%, बिल्डिंग वैल्यू बढ़ाने के लिए, आप दोनों में गलत कर रहे हैं। इसलिए ये जो स्टैंप ड्यूटी का वैल्यू है, आपका लैंड वैल्यू जो होता है किसी भी मौजा का, किसी भी आपका वार्ड का, किसी वार्ड का जो लैंड वैल्यू बेस होता है कि फलाने सर्जन से का गवर्नमेंट वैल्यू कितना है, 4 लाख रुपए डिस्ट्रिक्ट है, उस वार्ड में 10 लाख रुपए भी डिस्ट्रिक्ट होता है, 3 लाख रुपए भी डिस्ट्रिक्ट होता है। यदि आप उसको 20% बढ़ा के देते हैं और वो प्रॉपर्टी अंदर में है, वो 4 लाख के बदले वो 2 लाख उसका दाम है, तो आप तो उसको तिगुना चले गए, नई कंसेप्ट है। दूसरी बात, उसी मौजा में 4 लाख रुपए डिस्ट्रिक्ट है और आप इस प्रॉपर्टी को, आपका ये प्रॉपर्टी ये मेन रोड पर है और वही वहां पर 20 लाख रुपए डिस्ट्रिक्ट है, आप गवर्नमेंट वैल्यू उसका 4 लाख दे रहे हैं, तो वहां पर आप नीचे जा रहे हैं। इसलिए आपका जो ये नियम है ना, गवर्नमेंट वैल्यू को बेस बनाने जो भी आप फॉर्मेट बनाए हैं वो गलत बनाए। लास्ट में वो एक्सेप्ट किए बात को, लेकिन वो कर क्या सकते हैं, नियम तो बनाए हैं ऊपर वाले, इन लोगों को कोई पावर है नहीं, तो यहाँ कोई मैटर नहीं। दूसरी बात, डीड वैल्यू, कुछ लोगों को कहना है कि डीड वैल्यू देने में क्या दिक्कत है। यहाँ ये भी मैटर आता है कि हम 2 लाख रुपए खरीद रहे हैं, तो यदि हम स्टैंप ड्यूटी देने के लिए सक्षम है या मेरा कोई मकसद है, तो 2 लाख रुपए को हम 10 लाख रुपए का भी डीड बना सकते हैं। स्टैंप ड्यूटी देने से भी बन सकता है। तो इस तरह से यदि स्टैंप ड्यूटी किसी को कुछ मकसद है, कुछ करना है, तो वो 2 लाख रुपए डिस्ट्रिक्ट को 10 लाख रुपए दिखा देगा और सामने में 2 लाख रुपए रख देगा। इसका मतलब वैल्यूअर वो 10 लाख रुपए कर देगा। लेकिन ये मैटर जब कोर्ट कचहरी में जाएगी, तो कोर्ट कचहरी में पूछा जाएगा कि आप वैल्यूअर किस लिए है। जब सब कुछ आप डॉक्यूमेंट देख करके ही कर दिए, तो आपका क्या अस्तित्व है। इसलिए यहाँ सबसे बड़ी चीज है कि ये इस तरह का जो क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि इस तरह का वैल्यू गवर्नमेंट के बेस पर ये जस्टिफाइड नहीं। अब डिपेंड करता है कि करना क्या है। अब करना इसलिए क्या है कि अपने जस्टिफिकेशन, आपका जो अनुभव है, जो एक्सपीरियंस है, उसी के आधार पर आप कुछ कर सकते हैं। यहाँ मैटर यही होता, पहले जो हम लोग वैल्यूएशन करते थे, आज हम जो 30-35 साल से किसी खास बैंक की हम वैल्यू, आज तक 35 साल में किसी भी बैंकर्स पर कुछ नुकसान नहीं आया। उसमें रीजन क्या था कि वो प्रॉपर्टी देखिए आईडीएस के अनुसार नहीं है, अपने प्लान के अनुसार नहीं है। और यहाँ देखिए एक और मैटर आता है कि लोग बोलते हैं कि यहाँ पर आईडीएस के अनुसार नहीं है, ये नहीं, प्रॉपर्टी तो सेल बिक्री होगा। इसमें देखिए लॉजिक ये है कि हम लोगों को मान लीजिए कि आलू खरीदना है, हम मार्केट में आलू खरीदने जाते हैं, वहां पर सब के सब आधा सड़ा हुआ आलू है, लेकिन हमको आलू खरीदना ही, तो हमको उसकी आलू खरीदना ही पड़ेगा। तो वही हाल मार्केट की है। मार्केट में जितने प्रॉपर्टी हैं वो उसमें मैक्सिमम मोस्टली जो है नक्शा के अनुसार नहीं है, नक्शा से रिलेटेड है, सब कुछ है, लेकिन उस मार्केट में, उस लोकेलिटी में उसी तरह की प्रॉपर्टी है, इसलिए सभी उसको खरीद बिक्री करते हैं, उसका मार्केट वैल्यू है। लेकिन वो बोलेगा कि आईडीएस को सर्टिफाई कर दीजिए, इसको कमेंट के अनुसार सर्टिफाई कर दीजिए, तो लोहा को सोना नहीं दिख सकता है। लोहा जो है, लोहा का दाम मिलेगा, लेकिन लोहा को सोना नहीं।
यहाँ ये भी मैटर देखिए, हम लोग जो वैल्यू देते हैं तो वैल्यू हम लोग का यही बेस होना चाहिए कि इस प्रॉपर्टी को जब मार्केट में बेचेंगे, हम कुछ भी वैल्यू देते हैं, यहाँ लोग मांगता है मार्केट वैल्यू, रिलायबल वैल्यू, बिजनेस भी मांगता है, लेकिन वैल्यूअर यदि सही में बचना चाहते हैं तो उनको एक चीज देखना होगा कि मार्केट में हम जब इस प्रॉपर्टी को बिक्री करेंगे तो कितना में बिकेगा। यदि उस वैल्यू को मार्केट में बिक जाता है तब तो वैल्यूअर सेफ हो जाएगा, और नहीं तो उस सेफ्टी के कोई मैटर नहीं आता। अब यहाँ ये भी मैटर आता है कि जिस प्रॉपर्टी को हम बेच सकते हैं 10 लाख में, एक ब्रोकर बेच सकता है 15 लाख में। जो मैनेजर पहले लोन किया था वो अपने हिसाब से किया होगा, हो सकता है कि एक्टिविटी अच्छा होगा तो किसी प्रॉपर्टी को जज किया होगा कि नहीं ये 10 लाख में बिक जाएगा। दूसरा कोई आकर करके आज के डेट में उसको देखेगा तो वो प्रॉपर्टी में 5 लाख में भी बिक्री हो सकता है। इसलिए प्रॉपर्टी का मार्केटेबिलिटी है ना, वो पर्सन टू पर्सन सेलिंग एक्टिविटी पर डिपेंड करता है। इस तरह से हम लोगों का जो मेन प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम हम लोगों का पढ़ाई लिखाई के अलावे, पढ़ाई लिखाई के अलावे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ठीक क्या हुआ है, वैल्यूअर्स जेन्युइनिटी होनी चाहिए। वैल्यूअर्स में जब तक यूनिटी नहीं आएगा ये सब कॉम्प्लिकेटेड फार्मिंग में मैट जेन्युइनिटी करना, अनकंडीशनल रिपोर्ट बनाना, उस तरह का में जिसकी लेटर से असाइनमेंट रिसीव करना, आईपीएस को कंप्लायंस करना, वैल्यू को गवर्नमेंट से मांगा जा रहा है तो गवर्नमेंट के वैल्यू से भेज के करेक्शन कर दीजिए, गवर्नमेंट के रेट से वैल्यू कर दीजिए, तो इतना होना है ऐसा वैल्यू कर दीजिए। ये सब आज का बहुत मेजर प्रॉब्लम है, और इस मेजर प्रॉब्लम में हम नहीं समझते हैं कि कोई भी अर्थ ये मेरा आज के प्रॉब्लम। भरत Mr. Ram Navin, Mr. Hariom Giri has raised his hand. Can we ask the question? Reply. Mr. Hariom Giri has raised his hand. He want to ask something. Hariom Giri, please come forward. Open your mic. I am audible? Yeah, you are. मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था। अभी जो साहब बता रहे थे प्रॉपर्टी फिक्स की है, बट प्रॉपर्टी में तो ब्लैक मार्केट, ब्लैक वैल्यू इन्वॉल्व होती है। वो भी एक मेजर प्रॉब्लम है। वो ब्लैक मनी जो आप ट्रेड वाली बात करा रहे हैं, ट्रेड वाली वैल्यू तो हम देते ही हैं, और जब बैंक सेल करने जाता है तो प्रॉपर्टी सेल भी होती है। आपका क्या कहना होगा, क्या करना चाहिए जब फ्रेश वैल्यूशन करने जा रहे हैं तो उसमें क्या करना चाहिए हमारे को? आवाज कटता है, आवाज नहीं ठीक से आ रहा, आवाज ठीक से नहीं आ रहा। सर मैं ये कह रहा हूँ कि अभी आपने कहा कि वैल्यू हमें वो करनी चाहिए जो मार्केट में सेल हो सके, तो मार्केट में सेल होती है उसमें तो ब्लैक एंड व्हाइट दोनों कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं। हाँ, उसमें मार्केट में सर बैंकर जब सेल करने निकलता है तो वो तो एक नंबर पे सेल करने निकलता है, ओनली व्हाइट कंपोनेंट देयर। मार्केटेबिलिटी का ये भी एक मेजर फैक्टर है, इसीलिए बोला जाता है कि यदि मैं वो वैल्यूएशन दूंगा, प्लीज लिसन टू मी, यदि मैं वो वैल्यूएशन दूंगा कि जिसमें बैंकर प्रॉपर्टी बेच सके तो कोई हाउसिंग लोन या कोई भी लोन नहीं कर पाएगा, तो काम बंद हो जाएगा सब लोगों का। तो यही आती है ना सर, ब्लैक मनी के बारे में बोलते हैं। मैंने बोला कि बैंकर बेचने निकलता है तो एक व्हाइट में बेचता है, और हम वैल्यूएशन करते हैं तो ब्लैक एंड व्हाइट दोनों करते हैं, अदरवाइज बैंकर फाइनेंस नहीं करेगा। हमें तो वही बात बोल रहे हैं ना। हमारे साथी हैं
वो यही चीज फेस कर रहे हैं। लेकिन हमें तो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं करना। एज फार एवर कॉमन सेंस गोस, वी शुड नॉट सेपरेट इट। इट इज देयर इंटरनल मैटर। आप कैश कंपोनेंट कितना है, व्हाइट कंपोनेंट कितना, आई डोंट थिंक यू कैन डिफरेंशिएट दिस थिंग। But sir, you are giving the market value, net market value. Yes, one should. Those are no component involved in that value. Yeah, अच्छा ठीक How can I think so. I'm not civil valuer, but I think it should. देख ले Hmm. ठीक ठीक है ठीक नहीं, देखिए मार्केट वैल्यू का जो जजमेंट है ना, मार्केट वैल्यू का जजमेंट करते समय इस बात को ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि ब्लैक और व्हाइट के हिसाब से उसको उसी तरह से जज करना होगा। यहाँ पर भी फ्लैट का लोग बोलता है, फ्लैट का बोलता है कि 4,000 रुपया स्क्वायर फीट चलता है, लेकिन उसका रिपोर्ट मिलता है 3,000 रुपया स्क्वायर फीट, 2,500 रुपया। हमें तो मार्केट जज करना चाहिए। हमें तो मार्केट वैल्यू देनी है, और वो वैल्यू थोड़ी देनी जो सर्कल रेट में लिखी है या रेंज की वैल्यू में लिखी है। आप इसको जज किससे करेंगे, आप इसको सर्टिफाई किससे करेंगे? सपोज आप मार्केट वैल्यू दे दिए, आप अपने हिसाब से मार्केट वैल्यू कभी सर्टिफाई नहीं होती, वो तो वैल्यू जजमेंट है। यही तो आपसे कहना चाह रहा हूँ। सर एक चीज समझिए, हम समझ गए आपकी बात को जी। मार्केट वैल्यू जो आप बोल रहे हैं ना, उस वैल्यू को कोई नहीं मानेगा। उसी वैल्यू को मानेगा कि जिस दिन वो अकाउंट खराब होगा और पेपर में जब ऑप्शन किया जाएगा और ऑप्शन से जो पैसा मिलेगा उसी को मार्केट वैल्यू माना जाएगा। आप और हम बोलेंगे कि नहीं अभी ये 2,000 रुपये मिला और उस समय 4,000 था, तो उसका कमेंट देना पड़ता है, इसलिए उस बात को नहीं मानेगा कोई। उसके लिए आपको जस्टिफिकेशन देना होगा कि डीड वगैरह कुछ देना होगा। यदि आपका ये व्यू है तो कोई बैंकर हमारे को काम नहीं देगा। यदि हम ये कहेंगे भाई ऑप्शन में प्रॉपर्टी 10 करोड़ में सेल होगी, मार्केट वैल्यू इसकी 20 करोड़ रुपए है, तो हमें कोई काम नहीं देगा। वो कहेगा मैं जो 20 करोड़ करेगा उससे करवाऊंगा। प्रॉब्लम तो वही है ना, आज के डेट में प्रॉब्लम क्या है, जो सही वैल्यूअर है वो बोलता है कि इतना वैल्यू है, और जो उसको करने वाला है वो बोलता है कि उसके लोन के हिसाब से करें। प्रॉब्लम तो है ही ना सर इसमें सही वैल्यू की बात नहीं है, इसमें है ब्लैक एंड व्हाइट कंपोनेंट इन्वॉल्व होना, क्योंकि हमारे सर्कल रेट जो है मार्केट रेट से बहुत डाउन है, इसलिए हम लोगों को ये प्रॉब्लम आती है। सर जो सर्किल रेट है ना, सर्किल रेट कहीं कम है और कहीं अधिक है। हमने जो बताया कि सर्किल रेट जो भी होती है एक पार्टिकुलर प्लॉट के लिए नहीं होती है, वो उस पर्टिकुलर एरिया के लिए होती है। उस एरिया में कुछ अच्छे लोकेटेड प्लॉट होते हैं और कुछ इंटरनल प्लॉट होते हैं। अच्छे लोकेटेड प्लॉट का रेट बेसी होता है और इंटरनल प्लॉट का कम दाम होता है। गवर्नमेंट क्राइटेरिया वो के लिए पीएचडी चार्ज करा होता है, जो भी उसका फिक्स किया हुआ 10% 20% दोनों का सर्कल रेट सेम नहीं होता। जहाँ पीएलसी प्रोडक्ट नहीं, सर्किल रेट तो रोड साइड की प्रॉपर्टी का अलग होता है और इंटरनल प्रॉपर्टी का अलग होता है। वो कह देते हैं कि रोड साइड प्रॉपर्टी का सर्किल रेट ये है, वो तो स्टैंप ड्यूटी के लिए। सर्किल रेट्स आर बेसिकली फॉर स्टैंप ड्यूटी। तो बैंक ड्यूटी रेट से लगता है भाई, सब कुछ उसी वैल्यू में डिनाइज होता है, क्योंकि कोई भी आदमी सर्किल रेट पर ट्रांजैक्शन नहीं करना चाहता, कहता मैं सरकारी सरकार को स्टैंप ड्यूटी क्यों पे करूं। नहीं, आप बहुत सारे डीड में ये भी देखे होंगे कि हाइपर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ दिस प्रॉपर्टी इज हाइपर ट्रांजैक्शन वैल्यू इज दिस। वहाँ एक मैटर भी डीड के अंदर देखना चाहिए। यदि डिसएग्री करता हूं आपकी बात से, तो ट्रांजैक्शन होती है और सरकार ने वैल्यू क्या साल होती है, भाई भाई को नहीं बताता कितने ट्रांजैक्शन वैल्यू हो, दैट कंपोनेंट कौन किस पर डिक्लेयर करता है। नहीं, आप जो बात बोल रहे हैं हम समझ रहे हैं बात को, लेकिन ये ऐसा क्रिटिकल पॉइंट है ना कि इस पॉइंट को जो आप बोलिए कि नहीं मार्केट रेट है, उसको जस्टिफाई कौन करेगा? आज के डेट में जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए वैल्यूएशन है, उसके लिए किसी न किसी तरह आपको जस्टिफिकेशन करना होगा, या
वर्स्ट स्टेजिंग में जब वो बैंक बेचने जाएगा उतना उसको पैसा मिल जाएगा तो आपसे जस्टिफिकेशन नहीं, लेकिन यदि वो पैसा नहीं मिलेगा तो आपको फिर जस्टिफिकेशन दे करके ही बच सकते हैं। Mr. Hariom, if I Mr. Ram Govind, if I interview, देखिए मार्केट वैल्यू वो है जिस पे बिकी है, मे बी वैल्यू हायर, वो तो आ गई वैल्यूएशन 20 करोड़ वैल्यूएशन है, पर बिकेगा नहीं 20 करोड़ पे, तो आपको रियलाइजेबल वैल्यू देनी होती है, तो रियलाइजेबल वैल्यू तो वो ही ना जिसमें मार्केट हो सकता है, अब वो दीजिए, उधर रिलायबल वैल्यू भी दी जाती है। हाँ रिलायबल मार्केट बिजनेस तीनों वैल्यू दी जाती है आजकल, तीनों दी जाती है, तो वो तीनों इस तरह से तो सेग्रीगेट होगी कि भाई वैल्यू 20 करोड़ है, बिकेगी 10 करोड़ में, और रजिस्टर सेल में 8 करोड़ में या 5 करोड़ में या 6 जो भी कुछ है, तो इसी तरह तो वैल्यूएशन प्लांटेड मशीन में भी इसी तरह से करते हैं। The reliable value almost 80 to 99, 85 to 90% market रहता है सर। At what rate it can be realized? सर एक्चुअली परसेंटेज वाली चीज को मैं कभी एग्री करता नहीं हूँ, क्योंकि परसेंटेज वैल्यूअर्स का नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन द मार्केट। ये बैंक्स का एक वो बना तो वो कि साहब 80% बनना चाहिए, आपने तो ज्यादा कर, हम आपकी रिपोर्ट एक्सेप्ट नहीं करते। अरे भैया ये अगर 20% है तो सीए से करा लो ना, 20% तो आप खुद कर लोगे, हम तो कंडीशन देख के बता रहे हैं ना, हमारा वैल्यूएशन कुड बी प्रूडेंट, नॉट बेस्ड ऑन एनी फॉर्मूली, दिस इज द प्रूडेंट वैल्यूएशन। बैंक आर्ग्यूज, नो डाउट बैंक आर्ग्यूज के साथ ये 20% होना चाहिए था, आपने ये क्यों कर दिया, ये 30 होना चाहिए था, आपने ये क्यों कर दिया। This is why the valuer visits the factory or plant and machinery, और plant and machinery में तो एक एक मशीन देखनी होती है, तो उसमें ये देखना पड़ेगा कि ये मशीन की कंडीशन क्या है, इसके बराबर रख के दूसरी मशीन हो सकता है 1 लाख में चली जाए, पर वो एक मशीन उसमें से 50,000 नहीं जाएगी, दोनों मशीन की कंडीशन एक तो नहीं हो सकती ना। सर यही बात जो है ना, एक लैंड एंड बिल्डिंग में भी होता है। अब इसमें क्या है कि वैल्यूअर क्या करते हैं ना, कि वहां देखते हैं कि एक कंस्ट्रक्शन किया हुआ है 5,000 स्क्वायर फीट, और कंस्ट्रक्शन रेट है 2,000 रुपये स्क्वायर फीट पर, वो 5,000 इंटू 10, 5,000 इंटू 2,000 तो वैल्यू निकाल देते हैं। लेकिन इसका जो फैक्टर है ना, ये फैक्टर बहुत सारे डिपेंड करता है। आज के डेट में परचेजर जो है वहां जाने पर देखता है कि ये वास्तु से बना है कि नहीं, ये सुटेबल है कि नहीं, कमरा किस तरह का डिजाइन है, और इस तरह से यदि वेल प्लानिंग आज के मॉडर्न एज में वो बना है, प्लानिंग किया हुआ है, तभी उसका मार्केट वैल्यू जज कर करके 10% को आप कर सकते हैं, नहीं तो रियलाइजेबल वैल्यू उसको 50% भी डाउन जा सकता है। लेकिन इस बात को बैंक मानता नहीं है, ये दिस इज द पॉइंट। मानता नहीं है। बैंक का उसको चाहिए कि इतना वैल्यू चाहिए कि हमारा कस्टमर का कैलकुलेशन इतना है। प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम वैल्यू को ये प्रॉब्लम नहीं, बैंक से स्टार्टेड डायरेक्टिंग कि सब लो रखिएगा, बहुत लो रखिएगा, बहुत इंटरफियर, वैल्यूएशन में बैंक बहुत इंटरफियर करने लगा है। द क्वालिटी दे डिमांड इज डिफरेंट। सर बैंक का जो इसमें इसका जो डिमांड है ना बैंक का, वो सारा मेन तो प्रॉब्लम वही है। हाँ, करने को तो जाके कर देते हैं, अरे बोल देते हैं कि देखिए वैसे ये खराब है, वो खराब है, नक्शा तो आप बेचिएगा तो 10 करोड़ का प्रॉपर्टी है, 5 करोड़ से बेसी नहीं मिलेगा, लेकिन उनको तो वो कस्टमर प्यारा है, तो प्रॉपर्टी के बारे में देखते नहीं है, सारे तो प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट हो जाता है। बैंक्स आर नॉट प्रैक्टिकल एनी लॉन्गर। वो रिपोर्ट आपका फिल इन द ब्लैंक्स के लिए लेते हैं, क्योंकि उनको जरूरी है लेना,
इसने ले लिया, फॉर्मेलिटी के लिए, फॉर्मेलिटी दी। फॉर्मेलिटी के लिए लेते हैं, एज ए वैल्यूएशन नहीं लेते। हाँ, और वही वहां देखिए एक सबसे बड़ी बात है कि वही बैंकर, वही ऑफिसर, वही सब कुछ, जिस दिन वो अकाउंट खराब होगा ना, वो वैल्यूअर को फोन करेंगे, आपने कैसे वैल्यूएशन किया था कि ये प्रॉपर्टी 10 करोड़ का वैल्यू किए हैं, वो 5 करोड़ में भी नहीं बिक रहा है, और वही डिपेंडेंट का लेटर निकालेंगे, वही उस पर एक्शन निकालेंगे। इस तरह का प्रॉब्लम जो है ना, बहुत मेजर प्रॉब्लम होता है। हाँ। Banks demand that has deteriorated. Banks, if I be more frank, then the corruption is not in bank, and they. If I tell you one example, साल भर पहले आपने एक मशीन फाइनेंस की है 10 करोड़ रुपए, आज वो फैक्ट्री बंद हो गई। एक साल में सर 10 करोड़ आपने फाइनेंस कर दिया और एक साल में फैक्ट्री बंद हो गई। आपने क्या देखा था? नंबर 1, मशीन के कागज तो है, मशीन कहाँ है? ना तो जब लगी तब किसी ने इंस्पेक्शन किया, अब जब बिक गई तो जगह से उठ गई कि सब वहां नहीं है, वहां पर जगह खाली करनी थी इसलिए हमने खाली करा दी। मशीन देखने को नहीं मिली, आई थी या नहीं आई थी, लगी थी या नहीं लगी थी। साल भर में तो फैक्ट्री नहीं लगेगी, वो बंद होगी। हमने रिपोर्ट में लिख दिया, सब कर दिया क्लियर, लेकिन क्या सर हुआ? इवन हायर स्टूडेंट बॉदर, वो तो नोटिफाइड में खत्म। और मशीन कहीं किसा वहां फलानी जगह रखी है, वहां पे लोकल मार्केट का ब्रांडेड अड्डा पड़ा हुआ था, ओरिजिनल मशीन कहां गई? I made all these machines clear in my report, but nobody stated no value of the valuation, no value of the your remark. Even if there is any investigation, nobody asked the valuer. Right, sir. So, Mr. Govind, you will continue, please. सर मेरे को भी कुछ कहना है जी। मैं जो ना कुछ 2 केस स्टडी छोटी छोटी दिखाऊंगा, और उसमें हम तो बात जो कर रहे हैं कि वैल्यूएशन इसकी, कभी हमने सोचा नहीं कि हम लोग जो रिपोर्ट दे रहे हैं वो रिपोर्ट बैंक को जो लग रही है वो सही लग रही है या फर्जी रिपोर्ट लग रही है। वोट ऑफ थैंक्स तुमको देना। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हेलो सर, हमें 2 केस स्टडी आपको बताना चाहेंगे, उसमें हम ये हमको सबको जानकारी हो जाएगी आफ्टर ऑल बैंक कैसे वैल्यूअर को प्रेशराइज कर काम करवाता है। ये केस ये है, ये पिछले साल की है, हमें लेटर मिली थी, उसमें लेटर में हमसे कही गई कि आप जो ये वैल्यूएशन करिए जिसका लैंड एरिया 382.78 एकड़ है और एक 226.77 एकड़ है, मतलब करीब 600 एकड़ का जमीन का वैल्यूएशन करने के लिए दी गई है। ये ऑलरेडी फंडिंग हो चुकी है 2 साल पहले। जब खाता एनपीए हो गया तो मेरे पास आया कि इसको जरा वैल्यूएशन कर दीजिए। डॉक्यूमेंट कुछ नहीं है और ये लेटर सिर्फ इतना दी गई, वी आर हियर बाय अपॉइंट यू फॉर कैरिंग आउट द वैल्यूएशन ऑफ फॉलोइंग मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ फॉलोइंग। ये 2 पॉइंट जो देख रहे हैं उतना पेपर के आज डॉक्यूमेंट इतना हमको दी गई है कि इतना वैल्यूएशन करें। क्योंकि ये मैं एक्चुअली बैंक का नाम और जगह का नाम इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये होता बैंक वाले थोड़ी सी इसको मतलब अदरवाइज ले लें। तो ये प्रॉपर्टी गुड़गांव से ये लेटर आया था हमारे पास और ये प्रॉपर्टी कानपुर के पास ही थी। तो फिर मैंने क्या किया, उसका प्रॉपर्टी देखा कार में, क्योंकि ये इतना हेक्टर एकड़ जमीन है, 600-700 एकड़ जमीन है, उसे गांव भी है, नदी भी है, पहाड़ भी है, गांव समझ पता नहीं क्या क्या उसके अंदर नहीं है। और करीब 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर कार बैठ गए और जो लोन बोरोवर है उनका आदमी साथ में था। हमको दिखाते गया, सर वो जो पेड़ दिख रहा है ना सर, वहां तो हमारी जमीन है, वहां तो जमीन है, ये हमको दिखाते गया। मतलब पहाड़ करीब 20 फुट कहीं ऊंची टीला है तो कहीं 20 फुट गड्ढे, कहीं खेत है, कहीं गांव मतलब घर लोग बसे हुए।
तो फिर मैं प्रॉपर्टी देखने बाद 1 घंटे 2 घंटा क्यों कार में घूमना था, क्योंकि इतना तो दूर नहीं सकते। तो मैंने बैंक से कहा कि भैया, उनको फोन किया, फोन उठा नहीं। तो इनका लेटर का जवाब में मैंने उनको लेटर लिखी। ये लेटर ये है कि आज पर ये रजिस्ट्रेशन एंड इंस्पेक्ट द प्रॉपर्टी इतना। अब 5 को चला, ये आपके सामने है कि द लैंड शुड बी पार्ट ऑफ द लैंड परचेज फ्रॉम द पार्टनर एंड ऑल्सो बिलोंग टू ग्राम समाज। उसे ग्राम समाज की जमीन भी है, पहाड़ है, टीला है, गड्ढे है, नदी है, बहुत सारे क्या क्या नहीं है उसके अंदर। तो फिर मैंने उनसे लिख दिया कि ये प्रॉपर्टी वैल्यूएशन हमसे नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमने फोन मिलाया था, फोन को उठा नहीं, तो इसलिए मैंने उनको चिट्ठी जो है मेल करके भेज दी थी। तो उस पर संतुष्ट न होकर बैंक ने हमको चिट्ठी दिया दोबारा इसका जवाब में। ये सबमिशन, ये लिखा है, तो हेडिंग लिखे नॉन सबमिशन ऑफ वैल्यूएशन रिपोर्ट। तो उन्होंने हमसे ये लिखा कि आगे तो 2 डॉक्यूमेंट जो प्रॉपर्टी का एड्रेस वो लिखा हुआ, नीचे लिखा है हाउएवर यू हैव बाय ईमेल डेटेड 18/2021 shows your inability to conduct valuation on the document provided by us. It is informed that valuation from other value is also under process on the basis of document provided to you. In view of above, you are advised to inform reason why you should not be depaneled from our bank for not providing the valuation report. Please submit your reply within 7 days. और देखिए कितना गुंडागर्दी है। अगर जब बैंक हमको लिख के देता है कि वी आर इम्पेनलिंग यू as a valuer, but that does not guarantee that we will provide you the work. तो इसका मतलब ये भी हुआ, जो हमको इम्पेनल कर हम गारंटी नहीं दे रहे काम देने का, तो अगर हम इम्पेनल हुए, क्या जरूरी है कि हम उनका काम करें, हर काम करें? जो चीज हमें पसंद नहीं है, जो जस्टिफाइड नहीं है, वो तो मना करने का अधिकार हमारा है ही नहीं, जैसे लग रहा है उनका चिट्ठी से। तो उनका चिट्ठी से हमने फिर जवाब दिया, दिस इज रेफरेंस टू योर above मेल लेटर डेटेड 20/11/2021 for depaneling me on showing my inability to carry out the valuation of your mentioned account. In response to the mail dated इतना sent by a, actually ये एक पर्सन है जो AGM के फेवर में लिया, तो इसलिए ये भी डाउट है कि पता नहीं AGM इसमें इन्वॉल्व है भी या उनका कोई बाबू इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि ये फॉर करके साइन हुआ, AGM साइन नहीं किए थे। I visited the said property on 17/2021 along with the staff of the borrower. I had informed about my inability for preparing the valuation report, mentioned the problems on 18 December through mail. While preparing the valuation report, a valuer has to follow some ethics and model code of conduct. The prime requirement for a valuer before preparing the valuation report, any property is as follows. सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर्टी, जब तक प्रॉपर्टी हम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो उसको वैल्यूएशन कैसे देंगे? जो प्रॉपर्टी हम बात कर रहे हैं, जो 800 एकड़ का जमीन पे, वो आइडेंटिफिकेबल भी नहीं है और उसका बाउंड्री वेरीफाई हो नहीं सकती है, उसका साइज तो लाइन नहीं पता है, उसका लैंड एरिया कंफर्म नहीं हो सकती है, क्योंकि उन्होंने डॉक्यूमेंट कुछ दिया ही नहीं, खाली दो लाइन में लिख के दिया, ये ऑरेंज नंबर इतना है, इसका लैंड एरिया, इसका वैल्यूएशन करो। ये सब कहीं वैल्यूएशन होती है? और ताज्जुब की बात है, वो कम से कम 800 करोड़ का फंडिंग उसमें हुई थी। 800 करोड़ पहले एक ईटा तक वो साइड पे नहीं रखी गई है। वो एक पावर प्रोजेक्ट का था मतलब मामला, उसे फंडिंग बहुत मजे का 800 करोड़ फंडिंग होने के बावजूद भी एक इन्वेस्टर नहीं हुआ, और बैंक जो फाइनेंस हुआ उसको हमारा भाई लोगों ने कोई वैल्यूएशन करी, उसको डीएम रेट के आधार पे वैल्यूएशन कर दी। तो क्योंकि बात है, जो 800 एकड़ का जमीन है, जो डीएम रेट लग जाएगी तो कितना वैल्यू हो जाएगी, तो उसी वजह से फाइनेंस हो गई। एक इन्वेस्टर नहीं हुआ, खाता एनपीए हो गया। एनपीए होने के बाद दूसरे माथे में टोपी पहनाने की कोशिश करी कि चाहे चलो एनपीए होने के बाद कोई वैल्यूएशन मिल जाए तो कम से कम उसके तो सर पे टोपी पहना के हम बच जाएंगे। तो ये जितना हम प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, उसका बाउंड्री वेरीफाई नहीं हो पाया, साइज ऑफ द लैंड नहीं कंफर्म है, वेरिएशन ऑफ लैंड भी नहीं है, लैंड एरिया भी कंफर्म नहीं है, तो इसलिए तो हमने उनको ये लिखा कि इन द above mentioned case neither the land can be identified nor can be boundary and land area be verified. The letter received from you through mail only says the land area to be 609 acre. Without providing set of documents, how can you expect one professional to submit his report without working the facts? In spite of providing documents, clarification, you are insisting me to submit the valuation report. It is very strange on the part of you that instead of appreciating me, you are demoralizing, demotivating, and threatening me to depanel me from your bank. In your letter, you have mentioned that some other valuer is going to submit the report for the same. Then why can't I? In this regard, I would like to mention that the working of every professional differs with his opinion, and the opinion cannot be challenged and compared. I am working in your bank from last
15 years or so. So time in my professional career, I have received such letter from higher authority like you. तो ये लेटर जो है इसमें बैंक फाइनेंस करी, किसी भी वैल्यू के ऊपर फाइनेंस हुआ, लेकिन दुख की बात ये अगर बैंक का जो लेटर है उसको सही मानते हैं कि दूसरा वैल्यूअर भी रिपोर्ट दे रहा है, तो जाहिर सी बात वो जो वैल्यूअर होगा वो कानपुर के आसपास से कोई ना कोई वैल्यूअर होगा, क्यों बाहर से कुछ भेजा नहीं होगा। वो चाहे कोई भी हो, जो भी होगा वैल्यूअर हमारे भाई बंधु होंगे, तो उनसे मैं निवेदन करता हूं अगर ऐसा कुछ वैल्यूएशन कोई दिया हो, जो देना नहीं चाहिए, खाली लैंड एरिया देखते हुए किसी को वैल्यू देना ये निहायत गलत है, एथिक्स के खिलाफ है। तो ये हमारा जवाब पिछले बार 2021 से गई थी, उसके बाद दोबारा पलट के बैंक से कोई लेटर हमको मिला नहीं। तो ये केस 1 स्टडी है जिसमें हम ये जाहिर सी बात ये क्लियरली शो करता है कि बैंक अथॉरिटी हो सकता है वो एजीएम और डीजीएम न हो, ये भी नहीं हो सकता न हो, क्योंकि वो लेटर के नीचे फॉर एजीएम करके सिग्नेचर हुई थी, एजीएम के नाम से सिग्नेचर भी नहीं हुई थी। तो हो सकता है एजीएम डीजीएम या हायर अथॉरिटी को मालूम न होते हुए कोई बाबू उसको करके खेल खेलता रहता है। तो ये एक समझने वाली, सोचने वाली और विचारण बात है जिसको हम लोग विचार करें, और ये चीज को हम बैंक के अथॉरिटी तक भी कान पहुंचाए कि आफ्टर ऑल ऐसा फंडिंग क्यों होती है जिसके लिए वैल्यूअर को आप उसको बदनाम करते हैं। ये बिल्कुल क्लियर कट पॉलिसी है जिसमें बैंक ऑफिसर, बैंक मैनेजर इन्वॉल्व है। जो 800 करोड़ का फंडिंग हुई, 1 पैसा मिला नहीं, तो इसमें वैल्यूअर भी क्या करेगा, ये कहीं ना कहीं बैंक अथॉरिटी इन्वॉल्वमेंट है। ये हमारा इतना कहना है। ये केस 1 है। दूसरा केस स्टडी हम आपको बताते हैं जिसमें कैसे बैंक ने वैल्यूअर को रिपोर्ट में छेड़खानी करते हुए फाइनेंस किया। ये हमें लेटर मिली है, ये लेटर हमको मिली मेरे ख्याल 10-15 दिन पहले। ये रिपोर्ट हमारा डेट का रिपोर्ट लिखा हुआ, प्लीज रेफर योर वैल्यूएशन डेटा सबमिटेड टू ब्रांच, एक्चुअली ब्रांच का नाम नहीं लिखा है हमने। 25/8/2019 को एक हमने रिपोर्ट बैंक को, जो बैंक कहना है कि हमने 25/8/2019 को एक रिपोर्ट बैंक को दी थी जिसमें ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर बना हुआ दिखाई गई थी, जिसका वैल्यू 38.26 लाख हुआ। उसके बाद बैंक की चिट्ठी लिखता है, at present bank official along with branch officer visited the said property and found that there is plot having only boundary wall available on the said property। मतलब जो 2019 में जो वैल्यूएशन रिपोर्ट में जिसको हमारा रिपोर्ट कही जा रही है, उसमें 2 मंजिल बिल्डिंग थी। आज की तारीख में लोन हो गई, जो खाता एनपीए हो गई, तो बैंक वाले जाके देख रहे हैं उससे खाली लैंड और बाउंड्री वाल है। Keeping in view of present scenario that it is clear cut case the false valuation report submitted by you on very higher values, due to this bank has faced the over financing situation. Now you are advised to submit your explanation for doing this false valuation report within 3 days from receiving of this letter, otherwise bank has left no option for taking legal action against you। तो ये चिट्ठी जो हमको मिला, तो हमने फिर ऑफिस वाला को लगाया, मैंने कहा भैया देखो इस डेट का कोई रिपोर्ट हमारा कंप्यूटर है क्या। तो फिर ऑफिस वाला जितने कंप्यूटर वाले हमारा स्टाफ जितना है सब लोगों ने हमके लिख के दे दिया, सर हमारा रिकॉर्ड में 2019 में इस नाम पे कोई रिपोर्ट ही नहीं है, मुझे संडे था और ऑफिस बंद था, इसलिए हमारी रिपोर्ट ही नहीं। तो फिर हमने बैंक को चिट्ठी लिखी कि भैया जो रिपोर्ट की बात आप कर रहे हो वो रिपोर्ट तो कम से कम भेज दिए, तो मैं जानू तो सही हमारा साइड में कहाँ पे गलती हो क्या नहीं। तो फिर बैंक ने हमको रिपोर्ट भेजी। वो रिपोर्ट जो भेजी उसको देखी गई, तो उसमें दिखा गया फ्रंट पेज में तो लैंड एंड बाउंड्री लिखा हुआ है, लेकिन तीसरा पेज में वो लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू लिखा, मतलब लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू जुड़ गई। तो ये क्लियर कट पॉलिसी है बैंक ने, क्योंकि जो बैंक हम काम कर रहे हैं उसी बैंक पास हमारा लेटर पैड, हमारा सील, सिग्नेचर सभी उनके पास है। आजकल का जमाना ऐसा स्कैनिंग का जमाना हो गई, तो कहीं पे किसी का लेटर स्कैन करके किसी नाम सिग्नेचर लग जाती। तो फिर मैंने उनको बैंक को चिट्ठी लिखी, योर लेटर डेट 22/3/2023 received or not इतना, dear sir, we are in receipt of your above letter enclosing therewith valuation report allegedly submitted by us. In this connection, at the outset, we submit that the report dated 25/8/2019 has not been submitted by my office. The above report is fake and surplus to substantiate this fact, we submit as under. पहला पॉइंट है द रिपोर्ट, जो हमारा जो लेटर हेड जो लिखा था उसे बैंक का नाम एक्स लिखा था, लेकिन फाइनेंस हुई ब्रांच वाई में। तो हमारा कहना द रिपोर्ट इज एड्रेस्ड टू ब्रांच ऑफिस एक्स, व्हेयरएज द लोन इज सैंक्शन्ड एंड डिस्बर्स्ड एट ब्रांच ऑफिस वाई। मतलब एक्स ब्रांच के नाम पे जो लेटर रिपोर्ट उसके एड्रेस थी वो वहां पे फाइनेंस न हो गए, वो कोई दूसरा बैंक वाई के नाम वाई में फाइनेंस हो गई।
और जहां पे अगर मान ले कानपुर में प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी फाइनेंस कानपुर में ना होके अगर 100 किलोमीटर दूर पे हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ? As per the bank's extant guidelines, the recommending officer and incumbent in charge has to personally visit the property and is to submit his own valuation report, which is a part of document under his own signature. ये बैंक का पॉलिसी ये कहता है अगर कोई वैल्यूअर का वैल्यूएशन रिपोर्ट आता है बिफोर गोइंग फॉर एनी डिस्बर्समेंट, जो कंसर्न ऑफिसर है वो साइट विजिट करे, वो कंफर्म करे कि ये जो वैल्यूएशन रिपोर्ट वैल्यूअर का है वो सही है गलत है, उसका वैल्यू वो करेक्ट मानते हैं, उसका वैल्यू पे उनका कोई चैलेंज नहीं है, उसको सही मानते हैं। द सिग्नेचर आज वाला सील इनकॉर्पोरेट ऑन द वैल्यूएशन रिपोर्ट इफेक्ट। एक्चुअली जो मेरा सील लगी है, सील तो एस एस दास का लगी है, लेकिन मेरा जो मोहर है वो स्टाइल दूसरा है, वहां लगी दूसरा, क्योंकि जल्दीबाजी में उन्होंने गलत मोहर बना के मोहर लगा दी, इसलिए नाम का जो डिजाइन जो लेटर है वो उस पर मैच नहीं करी। इन द फर्स्ट वे ऑफ द रिपोर्ट अंडर कैटेगरी वैल्यूएशन इट इज मेंशन दैट लैंड एंड बाउंड्री वाल ओनली। हमारा जो लेटर जो रिपोर्ट वहां से लगी थी उसमें पहला पन्ना में लिखा वैल्यूएशन ऑफ लैंड एंड बाउंड्री वाल, लेकिन मैनेजर ने छेड़खानी तो करी लेकिन कुछ कमी रह गई, जिसकी वजह से वो जो पेजेस पीछे पीछे लगाई वो सभी फर्जी सिग्नेचर करी और उसे बाउंड्री का वैल्यू जोड़ दिया, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर जोड़ दिया। उसके बाद उसी रिपोर्ट में आजकल हम लोग फोटोग्राफ भेजते हैं, वो रिपोर्ट में फोटोग्राफ नहीं थी ना लोकेशन चाहिए थी, तो इसलिए मैंने लिखा द पिक्चर ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ द सेड प्रॉपर्टी इज आल्सो मिसिंग। The above fact clearly speaks that the report is prepared by some miscreant for some ulterior motive to defraud the bank for the purpose of his personal gains. We hope that the above reference will solve the purpose. तो ये हमारा कोई हेड ऑफ द बैंक से फोन आया था, तो उन्हीं का सिग्नेचर लेटर आया, उन्हीं को मैंने लेटर दिया और फिर जो मैंने एनालिसिस करी, जो हमने एनालिसिस करी और डायरेक्ट, क्योंकि हमको बैंक से उसका बोरो का नंबर ही मिल गया था, जब मैंने उसको पूछा, एक्चुअली हम थोड़ी सी प्रेस से भी जुड़े हुए, तो हमने किसी से माध्यम से उसे पूछवाया, तो उन्होंने साहब कहा कि साहब मेरे को पता नहीं कौन वैल्यूएशन आया था, रिपोर्ट बना नहीं बना, हमने सभी डॉक्यूमेंट बैंक को दे दिया, हमारा 25 लाख रुपया लोन सैंक्शन हुआ जिसमें मैंने साइन किया, मेरे को सिर्फ 8 लाख मिला, मतलब 25 लाख लोन सैंक्शन हुआ, उसको सिर्फ 8 लाख मिला, मतलब बाकी जो 17 लाख रुपया वो मैनेजर खा गया और उसको जानकारी नहीं है, वो सिर्फ डॉक्यूमेंट लेके बैंक को दे दिया, 3 से 4 दिन में वो लोन हो गया। तो इसलिए ये सबसे बड़ी समस्या ये पैदा हो रही है कि जो रिपोर्ट हम बैंक को ऑन फेथ पे दे रहे हैं, वो बैंक मैनेजर उस पर क्या ट्रीट कर रहा है, क्या कर रहा नहीं कर रहा, उस पर हमें गहराई से विचार करना चाहिए और इसमें आगे हम लोग क्या स्टेप लेना चाहिए। और जो बैंक मैनेजर्स हम भी वो जानकारी करी, उसके खिलाफ बहुत सारे केस चल रही है, क्योंकि जो ब्रांच से गया उसी ब्रांच से बहुत सारे लोन गड़बड़ किया, तो उसको जो पुलिस केस में एफआईआर भी हो गई, जेल भी हो गया, हर चीज हो गया, लेकिन उसमें वैल्यूअर का ही तो फंसने बात हुई। अभी जैसे राजकोट मामले में, राजकोट में जो लेआउट प्लान ने लिया था जिस बाधा पे, राजकोट को वैल्यूअर ने रिपोर्ट लगाई थी, इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, वो रिपोर्ट बैंक से मिला था उसको, स्टेट बैंक का राजकोट ब्रांच से, तो राजकोट ब्रांच का स्टेट बैंक का मैनेजर तो जेल हो ही गया था, साथ ही वहां का राजकोट का जो स्टेट बैंक का वैल्यूअर वो भी जेल हो गया, जबकि उसमें भी कसूर उसका नहीं था। डॉक्यूमेंट बैंक ने प्रोवाइड करी, उसी डॉक्यूमेंट पे आधार पे जो लेआउट प्लान दिया था बैंक ने, उसी आधार पे उन्होंने प्रॉपर्टी वेरीफाई करी, उसको रिपोर्ट दी और अगला को जो है उन्होंने जेल हो गया। तो इसलिए ये अभी समस्या पढ़ाई लिखाई के साथ साथ हम लोगों को ये जानना जरूरी है, सीखना जरूरी है कि इन फ्यूचर में ऐसा कुछ नौबत न आए कि हमारा रिपोर्ट से छेड़खानी करते हुए फर्जी रिपोर्ट लगाए, चाहे बैंक मैनेजर हो या कोई भी माध्यम से, उसको तरीका कुछ होना चाहिए ताकि अपना सेफ्टी के लिए आगे कुछ ध्यान बटे सबको। तो कर्नल साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस पे हम लोग क्या पहल करें ताकि इन फ्यूचर कोई वैल्यूअर को इस तरह से फर्जी रिपोर्ट से आधार पे हरास न किया जाए। थैंक यू। मिस्टर दास, एक तो चीज सबसे बड़ी निकल के आई इसमें कि बैंक्स आजकल सॉफ्ट कॉपी भी मांगते हैं। बैंक्स हैव स्टार्टेड आस्किंग सॉफ्ट कॉपी ऑफ द रिपोर्ट, तो आइदर वी हैव टू टेक ए डिसीजन कि सॉफ्ट कॉपी नहीं देंगे, क्योंकि सॉफ्ट कॉपी देने से दे कैन अल्टर इट, हालांकि सॉफ्ट कॉपी पर सिग्नेचर नहीं होता। बैंक्स हैव स्टार्टेड आस्किंग सॉफ्ट कॉपी। और दूसरा ये चीज है कि हमें आईबीए को हर हाल में किसी तरह से इन्वॉल्व करना पड़ेगा। सच केसेस शुड बी रिपोर्टेड एंड फॉरवर्डेड टू द आईबीए।
बिना आईबीए के एक जब तक कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं होगा जो आपकी प्रॉब्लम को, आपकी कंप्लेंट को अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर, आपने एजीएम को लिख दिया, एजीएम के यहाँ से हो रहा है, वो तो फाइन कर करके एज द केस हैपेंड, उसको हायर उसको ऐसी चीजें जो आप बता रहे हो, हाउ टू गो इन इन्वेस्टिगेशन, तो देयर मस्ट बी सम फोरम जिसमें हम इस चीज को रख सके और भेज सके कॉरेस्पॉन्डेंस को। तो इट मींस आईबीए, इट इज नेसेसरी टू इन्वॉल्व आईबीए। हम लोगों को आईबीए को इन्वॉल्व करना चाहिए कि साहब एक तो हमारी जो 3-4 पॉइंट्स हैं कि साहब एक तो फीस को आप रेगुलाइज करो, और एक यही है कि इस तरह की जो हरकतें हो रही हैं वो कैसे हम आपको रिपोर्ट करें, बैंक्स में क्या हो रहा है हम देख रहे हैं और हो कुछ नहीं रहा। वेन्यूअर तो बहुत चीजें मेंशन कर देता है, पर वो उसका फर्क नहीं पड़ता ना किसी को, क्योंकि किसी फोरम पे वो रिपोर्ट नहीं जा रही। तो मैं समझता हूँ आईबीए को अब या तो सॉफ्ट कॉपी के ऊपर में डिसीजन लेना पड़ेगा कि सॉफ्ट कॉपी सबमिट करें या ना करें। सर वो केस के बाद तो हमने अपना पॉलिसी चेंज कर दिया, तो हम जो रिपोर्ट बैंक को भेज रहे हैं हम साइन करके, स्कैन करके, मेल करके भेजता हूँ। और उससे वाला मजबूरी, क्योंकि वो बंडल सर क्यों 2019 का है, वो एक्चुअली हमने क्या किया, जब से प्रैक्टिस शुरू किया हो तब से लेकर अभी तक हार्ड कॉपी अपना अलग से बंडल बना के रखे रखा हूँ। तो ये भी बंडल हमको 2019 का मिली, तो दो धूल खाए थे, लेकिन फिर भी हमने उसको देख के उसे मिला कि चलो कंफर्म हो गया कि हमारे ऑफिस से रिपोर्ट टाइप नहीं हुई। नहीं, आप पीडीएफ फॉर्म में भेज सकते हैं, लेकिन पीडीएफ भी तो चेंज हो जाता है, एडिट हो जाता है। सर पीडीएफ कन्वर्ट हो जाती है। हाँ, यही तो चीज कह रहा हूँ, क्या कर पीडीएफ कर दो, वो कन्वर्ट करके उसे ऑल्टर कर लेंगे। पीडीएफ कन्वर्ट हो जाती है सर। आजकल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बैंक और डीएसए मिल जाते हैं, दोनों मिलकर चेंज करते हैं रिपोर्ट को। So there must be some forum. That's why I said that there must be some forum where this can be highlighted. This should be highlighted. सर अप्रैल में हम जा रहे हैं सर, आईबीए जा रहे हैं, एसोसिएशन तरफ से हम उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब और भी मामला हमारा है बहुत सारे, तो अप्रैल में जा रहे हैं सर। वो सबको एक्यूमुलेट इकट्ठा करके, और हाँ एक्चुअली क्या ना, 1 अप्रैल हमारा उड़ीसा डे बनाते हैं, तो उसके प्रोग्राम के बाद फिर हम उस पर, तो ये चीज तो मैं चाह रहा हूँ सर, क्योंकि आज डिस्कशन अच्छी हुई, आप जैसे अनुभवी मतलब हेलोर साथ में है, तो थोड़ी सी एक लेटर ड्राफ्ट हो जाए, तो एक रिपेंट आईबीए को भी कर ले और बैंक अथॉरिटी को भी हम कर ले आपके गाइडलाइंस के साथ। ठीक है सर, जिसको जो पॉइंट्स आईबीए के लिए मेंशन करने हैं वो ड्राफ्ट करके आपको पॉइंट्स भेजते हैं, आप उसको सबको एक्यूमुलेट कर लीजिए। Everybody should send their opinion and their, हाँ तो सब लोग आईभा का मेल पे अपना ओपिनियन भेज दें, हम उसको फॉरवर्ड कर देंगे शर्मा जी को भी और विनीत सर को भी, तो फाइनल लेटर ड्राफ्ट करके आज प्रेसिडेंट सिग्नेचर साइन करके फिर हम लेटर जो है आईबीए को, बैंक सभी बैंक को भेज देंगे कि ये सर प्रॉब्लम हो रही है। अभी हमारा जो अभी सर जो जीएम साहब जो चीफ गेस्ट थे, अभी उनसे व्हाट्सएप पे बात हो रही थी, तो उन्होंने कह रखा है कि आपका जो पॉइंट है आपका कमीचा फी स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग फी स्ट्रक्चर, कि क्योंकि ये तो हमें ज्यादा जानकारी है नहीं, तो आपका जो दिक्कत है, क्योंकि इनके पास ऑल ओवर इंडिया से मार्केटिंग है, तो बोले आप हमको चिट्ठी मेल कर दो, तो हम इसको देखते हैं क्या स्टेप क्या आगे करेंगे। तो एवरीबॉडी शुड सेंड एट लीस्ट सजेशंस, क्या होना चाहिए, उससे फिर मेन लेटर ड्राफ्ट करेंगे। मेरा सर, मैं दीपक पटना भुवनेश्वर से बोल रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि सर ऑल इंडिया जितना भी हेड ऑफिस है उनके पास लेटर जाना चाहिए। हेड ऑफिस में, हेलो, हाँ, हेड ऑफिस में जितना भी ब्रांचेस है बैंक का, ऑल इंडिया का हेड ऑफिस, और हर एक स्टेट में उनका हेड ऑफिस है, उनका हेड ऑफिस का जीएम के पास पूरा एक लेटर जाना चाहिए सर। ये मैटर जो है ना, ये मैटर बैंक का मैटर बैंक के पास जाने से नहीं होता, तो विनीत जी ठीक बोले हैं ना, उनका हेड ऑफिस में जाने से कुछ नहीं होता सर। उनका हेड ऑफिस में अगर कोई लेटर भेजेंगे ना सर, नहीं आईबीए का वो अपने सबऑर्डिनेट पे कोई एक्शन नहीं लेते हैं। नहीं, वो नहीं लेंगे सर। अगर पूरा ऑल इंडिया में भेजेंगे तो कुछ इम्पैक्ट आएगा उसमें, कोई तो हमारा बात सुनेगा ना सर। आईबीए हो गया ना, वो इंडियन बैंकर्स एसोसिएशन हो गया ना, दैट इज आईबीए को तो हम भेज सकते हैं, आईबीए तो अच्छा है,
वो तो अच्छा सजेशन है सर आपका। सर ये मैटर जो है ना, हम लोगों को भीख मांगने से कुछ होने का नहीं है। आपको जो हम लोग को छीनना पड़ेगा सर, ऐसे मांगने से कुछ नहीं होगा, ऐसे मांगने से कुछ नहीं होता है सर, हमको छीनना पड़ेगा उनसे। हाँ, छीनना पड़ेगा। अब वो समय आ गया छीनने वाला। हाँ, अभी तो अगर वो लोग हमको प्रेशराइज करते हैं कि आप उसको उतना दीजिए, नहीं तो रिपोर्ट रख दीजिए, ऐसा बोलते हैं। रिपोर्ट कर दिए सर आज की डेट में, है ना? ये चीज जो हो रहा है ना कि ये दीजिए नहीं तो रख दीजिए, ये जितना भी चीज हो रहा है, देखिए एक चीज समझने का है कि हाँ सर, आप मार्केट में जाते हैं, आप मार्केट में जाते हैं, 2 दुकान है, 3 दुकान है, आप खुद तलाशते हैं कि मेरा सामान किस दुकान में सस्ता मिलेगा। नहीं वो बैंक वाले तो तलाशे नहीं किस बैंक बैंक वाले तलाशे नहीं, बैंक वाले वो तो बैंक वाले देखते हैं कि हमारा जो लोन अमाउंट है उसी हिसाब से वैल्यूएशन कौन देता है। उनको हर चीज देखना है, हमारे डॉक्यूमेंट कम है, प्रॉपर्टी में खराबी है और हमको अमाउंट इतना चाहिए, तो ये सारे सर्कमस्टांसेस में कौन वैल्यूअर हमको साथ में भाई मैटर है। इस मैटर से वो करता है कि जो आदमी खुद ये कर रहा है उसके पास आप ले आके रिक्वेस्ट कीजिएगा, नहीं वो तो होता ही बताना है तो आपको स्टैंड करना पड़ेगा। सर नहीं, और बहुत सारे अच्छे ऑफिसर हैं जो हमने मेरा एक केस था, उसी में हमने बोला था, उन्होंने एक्सेप्ट किया भी। हमने उनको बोल दिया कि सर ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, हमको हमारे से रिपोर्ट लिया नहीं और दूसरे से बना दिया, वो लोन भी उन्होंने बंद कर दिया हेड ऑफिस से। मैटर जो है ना, ये मैटर जो ब्रांचेज है ना, ब्रांचेज को पावर नियम बनता है हेड ऑफिस से। हेड ऑफिस आईबीएस का जो बना है वो इंडिया लेवल को बना है, कुछ फॉर्मेट का बना, सुन लीजिए, कुछ फॉर्मेट का बना है तो हेड ऑफिस से बना है। हेड ऑफिस का जैसा डायरेक्शन होता है ब्रांचेज आ जाता है, तो ब्रांच में तो अपना खाना पूरा करने के लिए ये सारा करते हैं, पकड़े किस बिल को पकड़े, किसको क्या पकड़े, हमारा कारोबार चलते रहे, उनके पास पावर है ही नहीं। क्यों, वो तो कोई तो 5,000 देने का खर्चा लेने आए वो ठीक। सर फिर लेट अस कंटिन्यू। आज का मिस्टर एजी के सत्यप्रकाश तो आई थिंक हैज लेफ्ट। उन्होंने बात कही थी उस पर तो हमारा डिस्कशन हो गया था। मिस्टर राम गोविंद शर्मा ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन वाज इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रेज किए हैं, धन्यवाद करता हूँ। रामचंद्र सिंह जी ने ये ये आया कि भाई ये कम पे करते हैं, लेकिन आई हैव दिस एक्सपीरियंस, मैंने बैंक से कहा देखिए अगर बॉरोवर मेरी फीस पे करेगा तो मैं वैल्यूएशन करूंगा, वरना मैं आपकी फीस पे वैल्यूएशन नहीं करने वाला। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, बॉरोवर का फोन नंबर दे देते हैं। बॉरोवर नेवर माइंड टू पे द हायर फीस, वो पे करते थे बिकॉज़ नो उन्हें पता है कि ये पता है, बैंक ने रेफर किया, ठीक है, इंस्टॉलेशन वगैरह सब करते हैं, लेकिन बैंक नहीं पे कर सकता। बैंक के साथ लिमिटेशन हो गई क्योंकि उनको एक सर्कुलर हेड ऑफिस से उनके बैंक ने दे दिया। तो ये चीज भी हम लोगों को थोड़ा सा करना पड़ेगा और बैंक से तो कहना ही पड़ेगा। अल्टीमेटली फिर IB का रोल आ जाता है। एक किस चीज को नॉर्मल प्रैक्टिस बनाए, फीस को हमारे सब बैंक्स के लिए कॉमन करें, वो सारी फीस सब होनी चाहिए। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राम गोविंद शर्मा को, मिस्टर TK उपाध्याय से कहूंगा कि वो अपना वोट ऑफ थैंक्स। सर इसमें मेरा एक दो सजेशन है कि हम लोग इसको राइटिंग में जो भी देना है दे। सबसे मेजर चीज है कि जैसे आप नहीं करते हैं कितना पीपल नहीं करेंगे, हम नहीं करते हैं कितना पीपल नहीं करते हैं, लेकिन हम लोगों जैसा ही वैल्यू को दूसरा करता है, यस करता है। हम लोग क्यों नहीं, यदि एसोसिएशन बना है तो दास साहब इनिशिएट करें और इसमें एक यूनिटी बनावे, एक सर्कुलर बना दें कि आपको इतना में करना है, इतना में नहीं करना है, ऐसा नहीं करना। ये सेल्फ डिसिप्लिन की चीज है राम गोविंद जी। मुझे आज 100 रुपए चाहिए ही चाहिए, आपको 1000 भी नहीं चाहिए,
तो मैं तो 100 रुपए पे कर जाऊंगा, क्योंकि मेरा आज रात को रोटी कैसे बनेगा, खाना बनेगा। इट डिपेंड्स ऑन सबका अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है। वो रिक्वायरमेंट भी हमारे यहाँ कंट्री में बहुत मायने रखती है, और इसी वजह से ये प्रॉब्लम होती है कि जो नया आया उसे एस्टेब्लिश करने के लिए वो 500 रुपए में करने को तैयार हो जाएगा, जो काम आप 5,000 रुपए में नहीं कर। तो ये कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं। आप कोई इसलिए यूनिट फीस के ऊपर यूनिटी नहीं हो पाती है। अब ये तो बैंक को देखना होगा ना, हम तो बैंक को कर सकते हैं कि आपको अगर ये फिल इन द ब्लैंक करना है तो फिर आप काहे को तमाशा कर रहे हो, आप फिल इन द ब्लैंक क्यों करो, आप रिपोर्ट असेस करो ना। तो वो अपनी फीस अपनी वैल्यू भी बढ़ाएगा, स्टडी भी करेगा। अब तो बैंक, एक केस मेरा भी हुआ, मैंने भी देखा है, मैं फिर बता देता हूँ, मेरे को तो आई हैव लॉन्ग एक्सपीरियंस। बैंक क्या करता है, आपसे आपकी रिपोर्ट दिखा देगा कि साहब ऐसी रिपोर्ट बना दो और इसमें 10,000 रुपये सब में कम दे, जिससे हमारे पास 3 रिपोर्ट हो गई। अब हम एक्सेप्ट कर लेते, एक्सेप्ट हमारी रिपोर्ट करी, लेकिन 2 और लेनी। और वो रिपोर्ट कैसे बनाएगा, उसने रिपोर्ट नहीं बनाई, उसने 10,000 रुपए वैल्यूएशन में 10,000 15,000 कम करके और वैल्यूएशन सबमिट कर दी, और उसका तो काम 500 रुपए में हो गया, उसने तो कर दिया 500 रुपए में काम, उसे क्या जरूरत पड़ा। जो इस टाइप के वैल्यू है ना, जो एथिक्स पे काम नहीं करते या कम चीज पे काम करते हैं, वो ना किसी मीटिंग में आते हैं, ना उन्होंने कोई ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है, और बहुत एक काम में रहते हैं, उनका हम लोग कुछ नहीं कर सकते। वही है कि ये चीजें कुछ ऐसी हैं जिनका सॉल्यूशन नहीं है। वो तो एथिकल, जब तक आपके दिमाग में एथिकल नहीं होगा, आप दूसरे को एथिकल नहीं बना सकते। वो किसी ग्रुप में जुड़े नहीं है, क्या आप क्या करेंगे उसमें, जब जो लोग करने वाले उस ग्रुप में जुड़े हुए, दूसरे ग्रुप में जुड़े हुए, तो उसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता। That's right. बस ये हो सकता है कि भाई एथिकल करते हैं, फिर बाद में कहें कि साहब ये नॉन एथिकल प्रैक्टिस करते हैं, आप रिपोर्ट कर दीजिए, उसका रोटी रोटी सारी बंद हो जाएगी। और वो आप करना नहीं चाहते, हम भी नहीं चाहते। सर बैंक वाला उस पैसे को दबा के रखेगा और आपको सबसे पहले आपको काम करना पड़ता है। मैं ना रिक्वेस्ट मिस्टर उपाध्याय। सर आज हमारा सेक्रेटरी साहब है, उनका पापा वाले हॉस्पिटल गए हुए हैं, तो उनका एब्सेंस में हमारा जॉइंट सेक्रेटरी ललित मिश्रा जी है, तो ललित मिश्रा वोट ऑफ थैंक्स के लिए ललित मिश्रा। थैंक यू सर। सर हम अपने आईवा के सभी मेंबर्स का मैं धन्यवाद करता हूँ जो इस अपनी मीटिंग में आए और उन्होंने अपने अपने व्यूज रखे। और सर जैसे कि हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि जो लोग गलत काम कर रहे हैं, तो वो सर कोई ना कोई समय आएगा कि उनको कहीं ना कहीं कोई ना कोई सजा देगा, क्योंकि गलत से करते रहता है, और वो अपने आप धीरे करके वो कहीं ना कहीं बाहर हो जाएंगे सर। उसमें हम लोग को अपने एथिक्स पे काम करना है, जो अपने बाइलाज हैं, जो अपने तरीके हैं काम करने के, उनको अपने आप को जो है अच्छा रखना है। ये लोग कहीं ना कहीं बाहर होंगे, तो ये थोड़ा देर समय के लिए आते हैं ये लोग, और बस हम लोग को अपना अच्छा काम करते रहना सर। धन्यवाद सर, इसी तरह से जुड़े रहिए और कहीं ना कहीं। सर आप जो बोल रहे हैं ना, बहुत अच्छा बात बोल रहे हैं, उसमें हम लोग अच्छा काम करें, एथिक्स से काम करें, लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि अभी जो रिक्वायरमेंट कुछ पॉइंट पर है, कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मेट पर पॉइंट पर है, जैसे जेन्युइननेस ऑफ डिमांड और आइडियल सर्टिफिकेशन का अलग है, तो वो यदि हम कितना भी उसको कर करके उसको लगा देते हैं, एक्सेप्ट नहीं। पहले क्या था, पहले हम लोग जो रिपोर्ट बनाते थे तो उसमें हम लोग लिख देते थे भाई वैल्यू इतना आया, इसमें कमेंट से है, और वो कमेंट्स एप्लीकेबल होता था। आज के डेट में क्या है कि आप रिपोर्ट में जितना भी कमेंट्स लिख दीजिए और उसके ऊपर यदि वो अनेक्शन लगाते हैं तो सारे रिपोर्ट का कमेंट सील हो जाता है। उसका कोर्ट कचहरी में यही जाएगा तो यही जाना जाएगा कि भाईवर से कमेंट तो लिखा था, लेकिन उसके नजर में ये माइनर कमेंट्स है, इसलिए सर हम जैसे कि हमने आईवीआई किया हुआ है और हम लोग मीटिंग करते रहते हैं, तो उसमें सर बताया है कि अगर कोई प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम है तो सीधा उसको नो करिए, उसमें कमेंट मत डालिए, उसको सीधा रिफ्यूज कर दीजिए कि हमें ये नहीं करना है। कि सर अगर हम कमेंट डालते हैं और दूसरी जगह लिखते हैं कि
ये जेन्युइननेस है, प्रॉपर्टी करेक्ट है, मतलब एक तरफ लिख रहे हैं सब कुछ सही है, एक तरफ लिख रहे हैं नहीं इसमें कमियां हैं, तो फिर वो कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है हमारे लिए सर। तो इसलिए हम लोग को नो कहना पड़ेगा और उसी तरह चलना पड़ेगा सर। प्रॉपर्टी को मना ही करना पड़ेगा क्योंकि सर नहीं है जो मिशन ये से ड्रॉ करना चाहिए। हम लोग जितने कमेंट डालते सर वहाँ बैंक में कोई पढ़ता ही नहीं, बस जो वैल्यू देखते हैं दैट्स ऑल, बस खत्म। जो वैल्यू के हिसाब से सर फाइनेंस करते हैं उनको कोई मतलब नहीं आपने कमेंट क्या डाले हैं, उनको मतलब नहीं है, उनको मतलब नहीं है, लेकिन वैल्यूअर को मतलब बुरे दिन में पड़ेगा, वो कमेंट्स ही बचाएगा। क्योंकि हमने पहले इसी पॉइंट को रेज किया था कि मार्केट में जितने कमेंट वाले प्रॉपर्टी है, मैक्सिमम मोस्टली प्रॉपर्टी कुछ ना कुछ कमेंट्स है, लेकिन सब मार्केट में बिकता है। अब यहाँ जो ये एग्जाम्पल देखिए, कुछ मेजर एग्जाम्पल देखिए। यूपी में बहुत सारे चीज है कि जब कोई तरह का पोलिटिकल या किसी तरह का मैटर आता है तो इनका नक्शा से थोड़ा आगे बेसी हो गया है, उतना तो उस केस में यदि आप कमेंट्स नहीं लिखे, कमेंट्स आपका नहीं है, तो उस केस में आप बरी नहीं है। दूसरी बात, कमेंट्स लिखने के ऊपर यदि लिखते हैं कि माई रिपोर्टिंग इन आईबीएस कंप्लायंस, तभी आप बरी नहीं है। इसलिए हम लोगों को यहाँ पर सोच समझ कर हम दास साहब को एक ये भी किए हैं, वो आईबीएस इज नॉट एप्लीकेबल, वो रुके हुए थे आज की मीटिंग के लिए। तो हम ये करेंगे कि आप लोग भी अपना सजेशन उसको सर एक फॉर्मेट में एक पॉइंट होता है, कैबिनेट डिस्क्लेमर करके एक पॉइंट होता है सर, उसमें डालते हैं उसके अंदर, तो उसके अंदर काफी लिखना पड़ेगा, मतलब उसके अंदर और उसके अंदर एक वर्ड जी सर, तो उसके अंदर पॉइंट्स बना करके उसके अंदर डालिए, काफी अच्छा करिए। तो हमको लगता है और जो पॉइंट रिलेटेड है, अगर प्रॉपर्टी फिट नहीं है तो जो हम लोग लिखते हैं बैंक ऑफ इंडिया से लिखा था आई वैल्यू द राइट प्रॉपर्टी, ये बात हटा दिए सर, ये जब राइट प्रॉपर्टी है ही नहीं तो उसको हम राइट नहीं लिखेंगे। उसके जो डिक्लेरेशन है उसमें काफी कमी कर दिए सर। वो एक्सेप्ट करें चाहे ना करें, हम तो खुद चाहते हैं एक्सेप्ट ना करें, वो क्लियर करें तो हम कर देंगे करें। तो उस तरीके से चलना पड़ेगा, नहीं तो फिर क्या होगा ना सर, अगर हम ज्यादा बैंक का ध्यान रखेंगे तो बैंक हमें पकड़ देगा और दिक्कत आ जाएगी सर। तो बैंक को ध्यान रखने नहीं रखने की बात नहीं है, मैटर ये है कि हम जो रिपोर्ट कर रहे हैं, हमने तो ये बोला कि मार्केट में जितना प्रॉपर्टी है, दुनिया में जितना भी चीज है, सबका वैल्यू है। ऐसा नहीं है कि वो नक्शा के अनुसार नहीं बना है तो उसका वैल्यू, नक्शा किसी का नहीं है तो उसका वैल्यू नहीं है। तो यदि हम हिडन करते हैं तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। लिखने का अलग तरीका होता है। बैंक की गाइडलाइन के हिसाब से वैल्यू है लेकिन बैंक गाइडलाइन के हिसाब से वैल्यू गाइडलाइन के हिसाब से नहीं है। तो गाइडलाइन जो बोलता है कि इसमें पहले देखिए, पहले जितना यहाँ प्रॉपर्टी मॉर्गेज है, हम लोग जो वैल्यूएशन किए हैं किसी में आईबीएस कनेक्शन नहीं लगा हुआ, और आज के डेट में आईबीएस आ गया तो उसको रिव्यू करने के लिए बोलते हैं कि नहीं अब इसको आईबीएस से अरे वो तो खुद बिना नक्शा के है, वो प्रॉपर्टी है, तो आज आईबीएस को कैसे हो सकता है? मिस्टर अभी गोस्वामी, प्लीज शेयर योर नंबर। हरिओम गिरी। क्योंकि ये डिस्कशन का है तो हम लोग को सावधानी बरतनी जी। मिस्टर अभी गोस्वामी, प्लीज शेयर योर नंबर। हेलो, इनको मैसेज में शेयर कर लो सर। ठीक है। हेलो सर, हमारी आवाज आ रही है सर? ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। कोई ना कोई सोल्यूशन मिलेगा सर, बिल्कुल सर। जी सर, ओके, थैंक यू। मैं भी एक नमस्कार जुड़ रहा हूँ आजकल। क्या चीज है सर? अब जुड़ रहा हूँ। बोलिए। हमने कहा मैं भी नमस्कार जुड़ रहा हूँ, क्या बताऊँ? तुम्हारा क्या समस्या हो गया? मनोज को क्या दिक्कत होगी सर? अब है बताऊंगा, फोन में बताऊंगा। जी, कोई दिक्कत नहीं। ओके, थैंक यू सर, सबको थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू।